اسلام بڑی دقتوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ اس اسلام کی خاطر نہ جانے کیسی کیسی قربانیاں پیش کرنی پڑی، تب کہیں جا کر کے یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ حضرات، آج میں آپ تمامی حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مقدسہ کو بیان کروں گا۔ پروردگار مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کب ہوتی ہے، کس ماحول میں ہوتی ہے؟ حضرات، 4 بادشاہ ایسے گزرے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ 2 بادشاہ مسلمان ہیں اور 2 بادشاہ کافر ہیں۔ مسلمان بادشاہ ہے، اسلام جذبہ ایثار چاہتا ہے، اسلام جذبہ قربانی چاہتا ہے، اسلام حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی استقامت چاہتا ہے، اسلام حضرت ہاجرہ جیسا جگر چاہتا ہے، اسلام حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا صبر و تحمل چاہتا ہے۔ اور یہ اسلام اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا، اسلام بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے، اسلام بڑی پریشانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے، اسلام بڑی دقتوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ اس اسلام کی خاطر نہ جانے کیسی کیسی قربانیاں پیش کرنی پڑی، تب کہیں جا کر کے یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ حضرات، آج میں آپ تمامی حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مقدسہ کو بیان کروں گا۔ پروردگار مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کب ہوتی ہے، کس ماحول میں ہوتی ہے؟ حضرات، 4 بادشاہ ایسے گزرے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ 2 بادشاہ مسلمان ہیں اور 2 بادشاہ کافر ہیں۔ مسلمان بادشاہوں میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں اور ایک حضرت سکندر ذوالقرنین ہیں، اور کافر بادشاہوں میں ایک بادشاہ بخت نصر ہے اور دوسرا بادشاہ نمرود ہے۔ نمرود وہ بادشاہ ہے جس نے ساری دنیا پر حکومت کی۔ نمرود کو استدراج بھی حاصل تھا، اور نمرود کے زمانے میں نمرود نے ایک دن ایسا خواب دیکھا کہ آسمان سے ستارہ ٹوٹا ہے اور نمرود کے تخت کو اس نے خاک میں ملا دیا ہے۔ ایسا روشن ستارہ طلوع ہوا کہ جس کی روشنی پوری دنیا میں پھیلتی ہوئی چلی گئی۔ نمرود نے کاہنوں کو بلایا، نمرود نے نجومیوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں اپنا خواب بیان کیا۔ حضرات، نمرود اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، نمرود اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، اور نمرود کے جگہ جگہ مجسمے رکھے ہوئے تھے، جگہ جگہ نمرود کے مجسمے بنے ہوئے تھے جس کے آگے لوگ جھکا کرتے تھے۔ جہاں سے بت پرستی کا رواج چلا، جہاں سے بت پرستی رائج ہوئی، نمرود کے جگہ جگہ مجسمے بنا کر کے لوگ اس کے آگے جھکا کرتے تھے۔ تو نمرود اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا۔ ایسا رب کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، مجھے رب مانو، مجھے خدا کہو۔ نمرود نے جب یہ اعلان کرایا تو لوگ اس کے سامنے جھکتے بھی تھے، لیکن وہ بھی کیا رب ہے کہ جو اپنے خواب کی تعبیر بھی نہ بیان کر پائے؟ وہ بھی کیا رب ہے جو اپنے خواب کی تعبیر معلوم نہ کر پائے؟ خواب دیکھا ہے تو نجومیوں کو بلا رہا ہے، خواب دیکھا ہے تو کاہنوں کو بلا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ حضرات، نجومیوں نے جب خواب کو سنا تو سننے کے بعد ایک نجومی نے کہا، ایک کاہن نے کہا، تیری ریاست میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کے زوال کا باعث بنے گا، جو تیرے حکومت کے زوال کا سبب بنے گا، اور وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ نمرود نے سپاہیوں کی فوج تیار کرائی، اور لاکھوں کی تعداد میں فوج تیار کرنے کے بعد
बाद उसने पूरी रियासत में लोगों को दौड़ाया और कहा कि औरतों को मर्दों से जुदा कर दिया जाए और मर्दों को औरतों से अलग कर दिया जाए, ताकि ना मर्द औरत के पास जाएं और ना वो बच्चा पैदा हो। लेकिन उसे क्या पता कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले नमरूद ने लोगों को शहर से बाहर कर दिया ताकि कोई भी मर्द औरत के पास न जाने पाए और वो बच्चा इस दुनिया में न आने पाए। रात एक दिन ऐसा होता है कि इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा, एक दिन सख्त आंधी आती है, सख्त तूफान आता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा टहलते टहलते नमरूद के दरबार तक पहुंच जाती हैं, नमरूद के महल तक पहुंच जाती हैं। और जब आप वहां पहुंची जहां आपके शौहर जो है, शौहर की ड्यूटी लगी हुई थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारुख है। आप लोग बयान करते हैं आजर, लेकिन आजर वालिद नहीं बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चचा था। हजरत वालिद का नाम हजरत तारुख है, क्योंकि किसी भी पैगंबर की पैदाइश काफिर की सुल्ब से नहीं हुई है और किसी भी पैगंबर की पैदाइश काफिरा माँ के शिकम से नहीं हुई है। इब्राहिम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं और आपके वालिद और आपकी वालिदा दोनों अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इकरार करने वाले थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा आती हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद ने जब अपनी शरीके हयात को देखा और देखने के बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने फजल फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमाया और हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुल्बे पिदर से रहमे मादर में तशरीफ लाते हैं। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने माँ के रहम में तशरीफ लाते हैं, हजरात गिरामी अब अपने जहन को करीब करें। इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा के शिकम को जैसे और औरतों का मामला होता है कि जब बच्चे की विलादत का वक्त करीब आता जाता है तो उनका शिकम बढ़ता चला जाता है, पेट बढ़ता चला जाता है। लेकिन इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा का शिकम नहीं बढ़ता है, पता भी नहीं चलता है। पता चला पैगंबर जब इस दुनिया में आता है तो वो किसी को तकलीफ नहीं देता है। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत होने वाली है। आपके वालिद आपकी माँ को लेकर के एक गार के अंदर चले जाते हैं और वहां पर हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा होते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे को जब देखा तो देख करके खुश हो जाती हैं और जब नमरूद के जुल्म का तसव्वुर करती हैं तो आंखों से आंसू निकल आते हैं कि कहीं मेरे बेटे को कत्ल न करा दे नमरूद। हजरात गिरामी सुबह होती है, होने के बाद में नजूमी सर पीटते हुए नमरूद के दरबार में आते हैं और आकर के कहते हैं नमरूद वो बच्चा पैदा हो चुका है, नमरूद वो बच्चा इस दुनिया में आ चुका है। नमरूद ने अपने कारिंदों को भेजा, नमरूद ने अपने नौकरों को भेजा और कहा पता लगाओ किस घर में वो बच्चा पैदा हुआ है। रात हजारों बच्चे लाखों बच्चों को कत्ल कर दिया जाता है। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम गार के अंदर हैं। आपकी वालिदा मोहतरमा कहती हैं कि मोहल्ले की औरतें अगर मुझे मौजूद नहीं पाएंगी तो मुझे ढूंढने के लिए निकलेंगी, इसलिए मेरा घर पे जाना बहुत जरूरी है। घर पर आ रही थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा और अपने बेटे को मुड़ मुड़ करके देख रही थी, आंखों से आंसू पोंछ रही थी। अपने बेटे के लिए ये तसव्वुर करके कि कहीं मेरे बेटे को नमरूद के जुल्म का शिकार न होना पड़े। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम गार के अंदर तशरीफ फरमा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम की 3 उंगलियों में अल्लाह तबारक व तआला ने एक उंगली से पानी जारी फरमा दिया, एक उंगली से शहद जारी फरमा दिया और एक उंगली से दूध जारी फरमा दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिस चीज की हाजत होती थी आप उसको तनावुल कर लिया करते थे, आप उसको नोश फरमा लिया करते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे और बच्चे हफ्ते में बढ़ते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक दिन में बढ़ रहे थे, और बच्चे महीने में बढ़ते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक हफ्ते में बढ़ रहे थे, और बच्चों का हाल साल में जितना बढ़ते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक महीने में इतना बढ़ रहे थे। एक दिन आपकी वालिदा मुहतरमा पहुंची और बेटे को देखा, तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ से पहला सवाल किया, ऐ मेरी माँ मेरा रब कौन है? तो माँ ने कहा बेटा तेरी रब मैं हूँ। कहा माँ तुम्हारा रब कौन है? कहा तुम्हारे वालिद हैं। कहा मेरे वालिद का रब कौन है? कहा तुम्हारे वालिद का रब नमरूद है। कहा नमरूद का रब कौन है? इतना कहा तो माँ सोच में पड़ गई, कहीं ये वही तो बेटा नहीं है जो नमरूद की हुकूमत के जवाल का सबब बनेगा, कहीं ये वही तो लाल नहीं है कि जो नमरूद की हुकूमत को मिट्टी में मिला देगा। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सवाल किया कि नमरूद का रब कौन है, तो अब आपकी वालिदा मोहतरमा आ जाती हैं और आपके वालिद से कहती हैं मेरे बच्चे ने आज मुझसे ऐसा सवाल किया है, हमारे इब्राहिम ने आज हमसे ऐसा सवाल पूछा है कि मैं लाजवाब हो गई, उसका जवाब नहीं दे पाई। तब आपके वालिद ने कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद ने कहा क्या सवाल किया है? कहा मुझसे पूछ रहा था मेरा बेटा कि तुम्हारा रब कौन है। मैंने कहा कि बेटा मेरा रब तुम्हारे वालिद हैं। कहा तुम्हारा वालिद का रब कौन है? मैंने कहा नमरूद। कहा नमरूद का रब कौन है? तब मैं उसका कोई जवाब नहीं दे पाई। मुझे लग रहा है ये वही बेटा तो नहीं है जो नमरूद की हुकूमत के जवाल का सबब बनेगा, कहीं ये वही लाल तो नहीं है जो नमरूद की हुकूमत के जवाल का सबब बनेगा। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन बाहर निकले और आपने सूरज को, वो चांद को चमकता हुआ देखा। चांद पहले सितारों को देखा, सितारों से पूछा क्या तुम मेरे रब हो? लेकिन जब देखा कि चांद की चांदनी ने अपनी रोशनी को फैलाया तो सितारों की रोशनी मांद पड़ जाती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जिसकी रोशनी खत्म हो जाए वो रब नहीं हो सकता। इस्तिफहाम इनकारी के तौर पे आपने सूरज को देखा तो सूरज से कहा क्या तू मेरा बड़ा वाला रब है? तो सूरज को जब शाम को गुरूब होते हुए देखा तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जो डूब जाए वो रब नहीं हो सकता, जो डूब जाए वो खुदा नहीं हो सकता। हजरात गिरामी आप रब की तलाश में हैं, रब तबारक व तआला की तलाश में हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सितारों को देखा, सितारों की रोशनी खत्म हो गई, आपने कहा जिसकी रोशनी खत्म हो जाए वो रब नहीं हो सकता। आपने सूरज को देखा, सूरज गुरूब हो गया, आपने कहा जो डूब जाए वो रब नहीं हो सकता। हजरात गिरामी गैब से आवाज आती है इब्राहिम तू कहां अपने रब को तलाश कर रहा है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द, मैंने अपने चेहरे को जमीन और आसमान के पैदा करने वाले रब की बारगाह में रख दिया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब अपनी बस्ती की तरफ आते हैं। आने के बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ परवान चल रही है। एक दिन ऐसा आता है इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चचा आजर जो बुत तराशा करता था, आपने अपने चचा से पूछा ऐ चचा तुम उसकी क्यों पूजा करते हो कि जो ना नफा पहुंचा सकता है ना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, जो ना किसी की सुन सकता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इतना कहा तो आपके चचा ने कहा क्या तू मेरे बुतों की मुखालिफत कर रहा है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ मैं इनकी मुखालिफत कर रहा हूँ। इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इतना कहा तो आजर कहने लगा कि तू मेरे बुतों की मुखालिफत कर रहा है। इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन गली से गुजर रहे थे, एक बुढ़िया ने कहा कि बेटा मुझे आजर का पता बता दो, मैं उससे बुत खरीदती हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से कहा कि ऐ बूढ़ी माँ जरा ये तो बता क्या तू उससे बुत खरीदेगी और उस बुत को खरीदेगी जो ना तुझे नुकसान पहुंचा सकता, जो ना तुझे फायदा पहुंचा सकता, जो ना तुझे किसी तरह का न तेरी कोई बात सुन सकता है। कहा तू
उस रब की बारगाह में क्यों नहीं झुक जाती जो रब सुनता भी है, जो रब देखता भी है, जो रब तुझे फायदा भी पहुंचाता है। उसने कहा तू किस रब की बात कर रहा है? कहा उस रब की जिसको मैं मानता हूँ। मेरा वो रब है जिसने तुझे पैदा किया है, मेरा वो रब है जिसने मुझे पैदा किया है, मेरा वो रब है जिसने नमरूद को भी पैदा किया है। उसने कहा बेटा इतना बड़ा माबूद है तो उसके लिए हदिया भी बहुत बड़ा होना चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कोई हदिया बड़ा नहीं है, बस मेरा कलमा पढ़ ले और पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। इतना कहा था। उस बुढ़िया ने कहा फिर वो रब मुझसे राजी हो जाएगा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ वो रब तुझसे राजी हो जाएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इतना कहा उस बुढ़िया ने कहा अब मैं मरते दम तक उसी रब की इबादत करती रहूंगी जिस रब को तू मानता है। ये इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हजरात आपकी उम्र शरीफ परवान चढ़ती रहती है। एक दिन ऐसा आता है इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपने चचा आजर से मुनाजरा होता है और आजर ने कहा था तू हमारे बुतों को बुरा भला कहता है। आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों की तजलील की। उसके बाद में क्या होता है एक दिन ऐसा आता है इन लोगों का सालाना मेला लगा करता था। सारे लोग मेले के अंदर जा रहे थे। कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से तुम नहीं चलते हो? आपने फरमाया इन्नी सकीम मैं बीमार हूँ मैं नहीं जा सकता। सारे लोग चले गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक बड़ा सा कुल्हाड़ा लिया और लेने के बाद में बुतखाने के अंदर पहुंचे और आपने उनसे कहा कि बताओ। एक तरफ से कुल्हाड़ा मार करके बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया, माबूदाने बातिला को तोड़ना शुरू कर दिया और जो सबसे बड़ा वाला था उसके हाथ में कुल्हाड़ा रख करके उसके कांधे पर रख दिया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर आ जाते हैं। शाम को जब लोग मेले से वापस होते हैं और जब अपने बुतखाने के अंदर जाते हैं, जब बुतों का हाथ देखते हैं, किसी का हाथ टूटा पड़ा है, किसी की नाक कटी पड़ी है, किसी की गर्दन कटी पड़ी है, किसी का पैर कटा पड़ा है और कुल्हाड़ा बड़े वाले बुत के हाथ में है, तो लोगों ने कहा कि ये किसने किया है हमारे माबूदों का हाल, किसने हमारे ये माबूदाने बातिला का हाल किया है। हजरात गिरामी लोगों ने आपस में बैठ करके मशवरा किया। तब कहा कि हमने सुना है कालू समेना फतन, हमने सुना है एक जवान है। सूरह अंबिया के अंदर पूरा वाकया आया है। लोगों ने कहा हमने एक जवान को सुना है कि वो इनके बारे में बोल रहा था, यानी बुतों की बुराई कर रहा था। युकालु लहू इब्राहिम, उसे इब्राहिम कहा जाता है। लोगों ने कहा उसको लोगों के सामने लेकर के आओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सामने लाया जाता है। लोगों ने पूछा इब्राहिम क्या तूने ये हमारे माबूदों का हाल किया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह का कुरान कहता है काला बल कबीरुहुम, कहा उनके बड़े वाले ने किया है। कभी कभी बड़ों को छोटों पे गुस्सा आ ही जाता है, इसलिए बड़े वाले से पूछ लो अगर ये बोले, इससे पूछो कि इनका हाल किसने किया है, अगर ये तुमसे बात कर सके। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इतना कहा तो लोगों ने कहा ए इब्राहिम तू कैसी बात कर रहा है, ये हमसे कैसे बात कर सकता है, ये हमारी कैसे सुन सकता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मौका मिल गया। आपने फरमाया फिर तुम उसकी क्यों पूजा करते हो कि जो ना सुन सकता है, जो ना अपने ऊपर से मक्खी उड़ा सकता है, जो ना अपने ऊपर हमले को रोक सकता है, उस रब की बारगाह में क्यों नहीं झुक जाते जो मेरा रब सुनता भी है, जो मेरा रब देखता भी है, मेरा रब फायदा भी पहुंचाता है, और अगर उसके मानने वाले पर कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो रब उसकी तकलीफ को दूर भी करता है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इतना कहा तो लोगों ने मामला नमरूद के दरबार में पहुंचा दिया, और जब नमरूद के दरबार में मामला पहुंचा तो मशवरे होने लगे क्या किया जाए इब्राहिम के साथ में। किसी ने कहा कि इब्राहिम को जिला वतन कर दिया जाए, किसी ने कहा इब्राहिम को सूली पे चढ़ा दिया जाए, किसी ने कहा इब्राहिम को हमेशा के लिए कैद खाने में डाल दिया जाए, किसी ने कहा इब्राहिम को शहर बदर कर दिया जाए, किसी ने कहा कि इब्राहिम को आग में डाल दिया जाए। जब आग का मशवरा दिया गया तो सब लोगों का उसी पे इत्तेफाक हो गया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डालने की प्लानिंग की जा रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने की बात की जा रही है। 30 गज लंबी और 20 गज चौड़ी एक चार दीवारी बनाई जाती है, उसके अंदर लकड़ियां भरनी शुरू
شروع کر دی جاتی ہیں، اس کے اندر لکڑیاں بھری جا رہی ہیں۔ نمرود نے پورے شہر میں اعلان کرا دیا کہ ابراہیم کو جلانے کے لیے جو لکڑیاں نہیں بھرے گا اس کو بھی ابراہیم کے ساتھ میں آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس کو بھی ابراہیم کے ساتھ میں آگ میں جلا دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جلانے کے لیے آگ میں لکڑیاں بھری جا رہی ہیں، لکڑیاں بھری جا رہی ہیں جلانے کے لیے۔ چہار دیواری کے اندر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جو عورت بیمار ہوتی تھی وہ منت مانا کرتی تھی، اگر میں ٹھیک ہو گئی تو ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں بھروں گی۔ حضرات گرامی، جب لکڑیاں بھر دی جاتی ہیں اس میں 1 مہینے تک لکڑیاں بھری جاتی رہیں، اور جب لکڑیاں بھر گئیں اس کے اندر آگ لگا دی جاتی ہے۔ اب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، اتنی تیز آگ تھی کہ ملک شام سے آگ کی لپٹ دکھائی دیا کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ رب کے فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، میرے پروردگار، ایک بندہ ہے ابراہیم تیرا جس نے دنیا میں تیری وحدانیت کا اقرار کیا ہے، جس نے دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کیا ہے، جس نے دنیا میں تیری وحدانیت کے لیے لوگوں کو بلایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے وحدانیت کا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا جاتا ہے، اب آگ جلا دی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، لیکن ڈالے تو ڈالے کون؟ آگ کے اندر جو بھی ڈالے ابراہیم علیہ السلام کو وہ بھی جل بن کر کے راکھ ہو جائے، کیونکہ آگ کے قریب اتنی تیز لپٹ تھی کہ آگ کے قریب جانے والا بھی جھلس جائے گا، اتنی تیز آسمان سے اس کی آگ کے شعلے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں لایا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں آتے ہیں، نمرود نے کہا، اے ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود نے قید خانے سے 2 قیدی بلائے، ایک کی گردن مار دی اور ایک کو آزاد کر دیا۔ کہا، دیکھو ابراہیم، مارنا اور جلانا میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس کی بے وقوفی پہ ہنسی آ گئی، کیونکہ مارنا اور جلانے سے مطلب یہ ہے تخلیق یعنی پیدا کرنا، اور مارنے سے مراد یہ ہے کہ جسم کا تعلق روح سے الگ کر دینا۔ حضرات گرامی، نہ کہ گردن کاٹ دینا۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا، سن نمرود، میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال دے اور پورب میں ڈبو دے۔ حضرات جب اتنا کہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، 3 پارے میں پورا واقعہ آیا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، فبوہت الذی کفر، تو نمرود ہکا بکا رہ گیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، پروردگار عالم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، اگر نمرود یہ مطالبہ کرے کہ سورج کو ابراہیم تم پچھم سے نکلوا کے دکھاؤ تو جبرائیل سورج کو پچھم سے نکال دینا۔ حضرات گرامی، نمرود ہکا بکا رہ گیا، اس نے ایسا کوئی سوال نہیں کیا۔ نمرود بگلے جھانکنے لگا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، تم نے میرے لیے کہا ہے کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبوتا ہے، اور نمرود کے لیے کہا ہے کہ تو پچھم سے نکال کے پورب میں ڈبو دے۔ اے ابراہیم، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم ہے، تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ایک بار سورج کو میں پچھم سے نہ نکال دوں، اس لیے قرب قیامت سورج پچھم سے نکلے گا۔ حضرات گرامی، اب یہاں پہنچ کر کے میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں، تمام نبیوں میں سب سے بڑا مرتبہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے، تمام انبیاء میں سب سے بڑی شان مدینے والے مصطفیٰ کی ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، جب مولا علی شیر خدا کی نماز عصر مقام صحبہ میں قضا ہو گئی تھی، تب مدینے والے مصطفیٰ نے حضرت علی شیر خدا سے فرمایا، علی نماز قضا پڑھو گے کہ ادا پڑھو گے؟ عرض کیا، آقا میں علی ہوں، اگر میں قضا پڑھوں گا تو میرے چاہنے والے مجھے دلیل بنائیں گے کہ علی شیر خدا کی نماز بھی قضا ہو گئی تھی، اس لیے آقا میں ادا پڑھوں گا۔ نبی نے ارشاد فرمایا، علی تم نیت باندھو۔ علی شیر خدا عرض کرتے ہیں، آقا سورج ڈوب چکا ہے۔ آقا نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا علی کی نماز عصر قضا ہو گئی ہے، مولا تو دلوں کے راز جانتا ہے، مولا تو دلوں کے خطرات سے واقف ہے، مولا علی کی نماز ادا کر، علی کو نماز ادا
کرنے کے لیے سورج کو واپس کر دے، محبوب پہ وحی آتی ہے، رب ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب مجھ سے کیا کہتے ہو، میں نے تم کو مالک و مختار بنایا ہے، سورج پر تیری حکومت ہے، چاند پر تیری حکومت ہے، دریا پر تیری حکومت ہے، ستاروں پر تیری حکومت ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر تیری حکومت ہے۔ محبوب سورج بھی تیرے حکم کا تابع ہے، محبوب تم حکم تو کرو سورج واپس آئے گا۔ میرے آقا نے انگشت شہادت سے اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے اور وہ بھی پچھم سے نکلتا ہے۔ حضرات گرامی، مدینے والے مصطفیٰ نے سورج کو پچھم سے نکال دیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو لباس بشریت عطا فرمایا ہے تاکہ کوئی انسان یہ نہ کہہ دے کہ محبوب نے سورج کو پچھم سے نکالا ہے، اور جو سورج کو پچھم سے نکال دے وہ خدا ہوتا ہے۔ کوئی محبوب تمہیں خدا نہ کہہ دے، اس لیے تم کو لباس بشریت میں بھیجا گیا ہے۔ میرے آقا کی شان وہ ہے کہ جو سورج کو پچھم سے نکال دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، مدینے والے مصطفیٰ نے سورج کو پچھم سے نکال دیا۔ علی شیر خدا سے فرماتے ہیں علی نماز کو جلدی جلدی مت پڑھنا، کیونکہ علی سورج نکلا ہے میرے حکم سے نکلا ہے، اور اے علی سنو، تم نماز عصر کو ادا کرو، تب تک سورج نہیں ڈوبے گا جب تک تم اپنی عصر کی نماز مکمل نہیں کر لو گے۔ میرا امام پکار کے کہتا ہے اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تباہ تمہارے لیے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ ہوں اے عقل والو، میرا محمد خدا نہیں ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں پر یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورج کو پچھم سے نکال دیا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی مہ کا کلیجہ چر گیا، تیری انگلی اٹھ گئی مہ کا کلیجہ چر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے نمرود سے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے پچھم میں ڈبوتا ہے، تو سورج کو پچھم سے نکال کے پورب میں ڈبو دے۔ اتنا کہا تھا فبوہت الذی کفر، قرآن کہتا ہے کہ نمرود ہکا بکا رہ گیا، نمرود بگلے جھانکنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال کا جب کوئی جواب نہیں دے پایا تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے حکم جاری کر دیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے تو کیسے ڈالا جائے؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے جب کوئی پلان ان کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا تب ابلیس لعین آیا لمبا جبہ پہن کر کے، آ کر کے نمرود سے کہنے لگا کہ ڈالنے کا طریقہ میں تجھے بتاتا ہوں۔ نمرود نے کہا تو کون ہے؟ کہا کہ میں برسوں سے تیری خدمت میں لگا ہوا ہوں، مجھے نہیں جانتا ہے، میں تیری خدمت کے لیے لگا ہوا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ ابراہیم کو آگ میں کیسے ڈالا جائے گا۔ جب ابلیس جنت میں رہتا تھا تو اس وقت اس نے منجنیق کو دیکھا تھا کہ جس کے اندر جہنمیوں کو رکھ کر کے جہنم کے اندر ڈالا جا رہا تھا، وہ اس کے بنانے کا طریقہ جانتا تھا۔ ابلیس لعین نے کہا کہ مجھے پتا ہے، اس نے لکڑی منگوائی، لکڑی منگوانے کے بعد میں منجنیق کو تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد میں اس میں پتھر کو رکھ کر کے آگ کے اندر ڈالا۔ نمرود کو یہ طریقہ بہت پسند آیا، کہا ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو لایا جاتا ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے اندر رکھ کر کے آگ میں پھینکنے کی تیاری کی جا رہی ہے، آگ میں ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار دنیا میں کیا تھا، جنہوں نے پرچم اسلام کو بلند کیا تھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے میرے پروردگار، ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، مولا تیرے بندے نے تیرا نام دنیا میں لیا ہے، مولا تیرے بندے نے اسلام کا پرچم بلند کیا ہے، اے میرے پروردگار ابراہیم کو آگ نے جلا دیا تو پھر کوئی نہیں ہے جو اللہ اللہ
करे। मौला कोई नहीं है जो तेरी वहदानियत का इकरार करे। मौला फिर कोई नहीं है जो तेरी वहदानियत की राह पे चलने के लिए लोगों को कहे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों कहना क्या चाहते हो? फरिश्तों ने अर्ज की, मौला हमें इजाजत दे, हम तेरे बंदे इब्राहिम की मदद करें। अल्लाह ने फरमाया, जाओ मेरा इब्राहिम तुम्हारी मदद ले तो शौक से करो। हवा का फरिश्ता आता है, कहता है इब्राहिम मेरी हुकूमत तूफानों पर है, मेरी हुकूमत हवाओं पर है, इब्राहिम इजाजत दो मैं आपकी मदद करूं, इस आग को उड़ा करके कहीं ले जाऊं और इन लोगों को भी ऐसे तबाह कर दूं, ऐसे हिलाक कर दूं जैसे कौम आद को तबाह और हिलाक किया गया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरी कोई हाजत नहीं है। एक फरिश्ता, पानी का फरिश्ता आया जिसकी हुकूमत पानी पर थी। उसने कहा, इब्राहिम मेरी हुकूमत दरियाओं पर है, मेरी हुकूमत समंदर पर है, मेरी हुकूमत पानी पर है, आप इजाजत दो मैं इतना पानी इस आग पर बरसाऊं कि ये आग यहीं पर बुझ जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब आग में जाने वाले हैं जिसके अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रखा गया था, बिठाया गया था। मिनजनीक के अंदर उसको जमीन ने पकड़ लिया था और जमीन उसको छोड़ नहीं रही थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए जब लोग परेशान हो गए कि कैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस मिनजनीक में बैठे हुए थे उसकी जो कोठरी नुमा चीज थी वो उसके अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे थे और वो उसको जमीन ने पकड़ लिया था। तब इब्लीस ने कहा था 40 मर्द और 40 औरतें बिल्कुल बरहना होकर के आएं और आकर के यहाँ पर जिना करें। माज़अल्लाह जब वहां पर जिना का मशवरा दिया, नमरूद ने ऐसा ही हुक्म दे दिया, 40 मर्द और 40 औरतें आई और आकर के उस जमीन पर जिना किया। वो जमीन का हिस्सा खाकिस्तर हो गया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पलवे को जमीन ने छोड़ दिया, क्योंकि जहां जिना होता है वो जमीन का हिस्सा जला दिया जाता है, जहां जिना होता है जमीन का हिस्सा वो तबाह हो जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पल्ले को जब मिनजनीक के पल्ले को जब आज जमीन ने छोड़ दिया, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में पहुंचने वाले हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर के कहते हैं, इब्राहिम आपकी कोई हाजत हो तो मुझे बताओ, मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हाजत तो है लेकिन तुमसे नहीं। कहा, फिर जिससे हाजत है उससे मुझे बता दो, मैं उसकी बारगाह में जाकर के बयान कर दूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब मेरा हाल जानता है, मेरा रब मेरे दिल का हाल जानता है। शायर कहता है, जानता है वो मेरा रब्बे जलील, आग में पड़ता है अब उसका खलील। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ जिब्राइल तुम्हारी कोई हाजत नहीं है, मेरा रब मेरे दिल का हाल जानता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में पहुंचने वाले हैं। हज़रात गिरामी, अब यहाँ पहुंच करके एक बात और मैं आपको बता दूं, मेरा इमाम पुकार के कहता है, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि तुम्हारी कोई हाजत हो तो मेरे सामने बयान करो, मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। जब मेरे आका मेराज को तशरीफ ले जा रहे थे, जब मेरे आका मेराज को तशरीफ ले जा रहे थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम साथ हैं, पहले आसमान पे साथ हैं, दूसरे आसमान पे साथ हैं, तीसरे आसमान पे साथ हैं। जब सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता, मेरी यही मंजिल है, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। अगर बाल के पर के बराबर भी मैं आगे बढ़ा तो रब की तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। सिदरा पे मेरे आका जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल याद करो वो बात जो तुमने मेरे दादा इब्राहिम से कही थी कि मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। ऐ जिब्राइल सुनो, आज तुम्हारी कोई हाजत हो तो मेरे सामने बयान करो, मैं वहां जा सकता हूं जहां तू भी नहीं जा सकता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ आका मेरी एक तमन्ना है, हाँ आका मेरी एक आरजू है, हाँ आका मेरी एक ख्वाहिश है। कहा क्या है? तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आका मेरी तमन्ना ये है कि जब कल पुल सिरात से आपकी उम्मत गुजर रही हो तो आप मुझे इजाजत दे दें कि मैं अपने नूरानी परों को बिछा दूं और आपकी उम्मत मेरे परों पर से आसानी के साथ गुजर जाए। मेरा इमाम पुकार के कहता है, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो।
अहले सिरात रूहे अमी को खबर करें, जाती है उम्मत नबवी फर्श पर करें, किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए ना शर करें। हजरात, तो हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहि सलातो व सलाम से हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम ने कहा, आपकी कोई हाजत हो तो बयान करो, मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। सिदरतुल मुंतहा से आगे जब मेरे आका बढ़ रहे थे तब मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल तुमने मेरे दादा इब्राहीम से कहा था कि मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। जिब्राइल इससे आगे मैं जा रहा हूं, तुम्हारी कोई हाजत हो तो बयान कर दो, मैं वहां जा सकता हूं जहां तुम भी नहीं जा सकते। हजरात गिरामी, मदीने वाले मुस्तफा का मर्तबा तमाम अंबिया में अफजलो आला है। आला हजरत फरमाते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में पहुंचने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आग को हुक्म दिया। अल्लाह का कुरान कहता है, कुलना यनारो कोनी बरदों व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग मेरे इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। ऐ आग मेरे इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार हो गई। उसके अंदर जन्नती तख्त बिछा दिया गया, फुलवाड़ियां लग गईं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए एक मसनद आई, उस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक शबी आया जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हवा कर रहा था, पंखा जल रहा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के अंदर बड़े आराम से हैं। हजरात गिरामी, हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहि सलातो व सलाम आग के अंदर हैं। नमरूद की बेटी जिसका नाम रगफा था, उसने सोचा कि लाओ देखूं। जब छत पर चढ़ी उसने सोचा लाओ देखूं इब्राहीम को आग ने जला दिया है कि नहीं जलाया है। जब ऊपर से देखा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े आराम से आग के अंदर बैठे हुए हैं और एक आपका शबी आपकी हवा झल रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से फरिश्तों को भेज दिया था इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत करने के लिए। उस लड़की ने कहा, रगफा ने कहा, ऐ इब्राहीम आपको आग ने नहीं जलाया? आपने फरमाया नहीं। कहा किसने तुमको बचाया? कहा मेरे उस रब ने मुझे बचाया है जिसने मुझे पैदा किया है, तुझे पैदा किया है और नमरूद को पैदा किया है। उस लड़की ने कहा क्या मैं भी तुम्हारे पास आ सकती हूँ? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ आ सकती है, लेकिन तुझे उससे पहले कलमा पढ़ना पड़ेगा। उसने कहा क्या कलमा है? आपने फरमाया पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, ये कहे और आकर के आग में कूद पड़। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा तो उस लड़की ने ये कलमा पढ़ा और आग के अंदर छलांग लगा दी। आग के अंदर पहुंच गई, उसको भी आग ने नहीं जलाया। हजरत गिरामी, हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहि सलातो व सलाम है कि आग के अंदर तकरीबन 7 दिन या 8 दिन तक आप रहे। उसके बाद आप आग से बाहर तशरीफ लाते हैं। सारे लोग हैरान रह गए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग ने नहीं जलाया। ये देख करके बहुत से लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन में मुशर्रफ इस्लाम हो गए। आ गए लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीन इब्राहीमी में दाखिल हो गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस जगह को छोड़ दिया। इब्राहीम अला नबीना अलैहि सलातो व सलाम वहां से चले। आपने हिजरत की मुल्क शाम की तरफ, बाबिल को छोड़ दिया और आप मुल्क शाम की तरफ हिजरत करते हैं। आपके साथ में आपकी बीबी हजरत सारा हैं और हजरत सारा को अल्लाह ने वो हुस्न अता फरमाया था। हजरत सारा को अल्लाह ने वो खूबसूरती अता फरमाई थी। हजरत सारा के दौर में कोई भी उनसे ज्यादा हसीन और जमील नहीं था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो हुस्न मिला है वो हजरत सारा के हुस्न का एक हिस्सा है। हजरत सारा के हुस्न का एक हिस्सा है। जरा सोचो तो सही, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न, जिसके हुस्न को देख करके मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट ली थी, हजरत सारा के
के हुस्न का एक परतव है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न। अल्लाह अकबर। हजरत सारा बड़ी हसीनो जमील थी और साथ में हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी हैं। अब ये बाबिल को छोड़ करके मुल्क शाम की तरफ हिजरत कर रहे थे। रास्ते में मिस्र की सरजमीन पड़ती है। मिस्र की सरजमीन का जो बादशाह था वो बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह था। वो बादशाह ने ये ऐलान कर दिया था कि अगर किसी लड़की की शादी होगी तो पहले उस लड़की को मेरे हरम में लाया जाएगा, फिर उसके बाद वो लड़की अपने शौहर के पास जाएगी। और उसके जगह जगह चौकीदार, उसके नुमाइंदे बैठे हुए थे। शहर के मुख्तलिफ कोनों पर उसने चौकीदार लगा दिए थे कि अगर कोई हसीनो जमील लड़की या औरत गुजरती हुई दिखे उसको मेरे महल में हाजिर किया जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गुजर रहे हैं, छोटा सा काफिला है। हजरत सारा के चेहरे पर जब नजर पड़ी तो लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत सारा को बादशाह के महल तक पहुंचा दिया। बादशाह ने जब हजरत सारा को देखा तो देख करके कहने लगा कि इनको मेरे हरम में पहुंचा दिया जाए। हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा बादशाह के हरम में है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरी बहन है, फिर भी बादशाह नहीं माना। आप नमाज शुक्राना पढ़ने के लिए खड़े हो गए। हजरात गिरामी रब की इबादत कर रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, नफल नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए पूरे महल को शीशे की मिसल कर दिया था। आप बाहर से अंदर का मंजर देख रहे थे। उस बादशाह ने जब गलत इरादे से हजरत सारा की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ शिल हो जाता है, उसका हाथ खराब हो जाता है, हाथ नहीं उठ पाता है, आंखों की रोशनी चली जाती है, वो घबरा जाता है और कहता है कि आप दुआ कर दो अल्लाह ताला से कि मेरा हाथ और मेरी आंखें ठीक हो जाएं। हजरत सारा ने दुआ की, उसका हाथ और उसकी आंखें ठीक हो जाती हैं, लेकिन वो फिर यही इरादे, गलत इरादे से हाथ आगे बढ़ाता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला उसकी आंखों की रोशनी भी खत्म कर देता है और उसके हाथ को शिल कर देता है, हाथ बिल्कुल खराब हो जाता है। उसने फिर माफी मांगी। हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर दुआ की। हजरत गिरामी उस बादशाह ने अपनी एक बांदी को हजरत सारा की खिदमत के लिए दिया था और कहा था हाँ अजरों के, ये तुम्हारे लिए एक अजर है, एक तोहफा है। उसी दिन से वो बांदी दी गई, इसलिए उनका नाम हाजरा पड़ गया था। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत सारा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम छोटा सा काफिला लेकर के जब मिस्र से आगे बढ़ते हैं तो एक जगह आती है मुतफिकात, वहां पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम रुक जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला नबूवत के मनसब से सरफराज फरमाता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लग जाती है, आप वहां पर खिदमत करते हैं, आप वहां पर रब की वहदानियत का ऐलान करते हैं, आप वहां पर रब की वहदानियत की तरफ लोगों को बुला रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम की तरफ चल देते हैं और जब आप अर्ज़ मुक़द्दस में पहुंचते हैं, इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास में जब आप थे तब हजरत सारा ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अर्ज की, हुजूर मैं चाहती हूं कि आप हाजरा से निकाह कर लें। तो हजरत सारा के बतन मुबारक से कोई औलाद नहीं थी। हजरत हाजरा से जब निकाह हो जाता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ की। आप उम्र की आखिरी दहलीज पर थे, तब अपने रब की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे नेक बेटा अता फरमा दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझको नेक बेटा अता फरमा दे। नेक बेटे के लिए दुआ कर रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो पता चला जब औलाद नेक होती है तो माँ बाप की इज्जत का सबब बनती है। औलाद जब नेक होती है तो माँ बाप की नेक नामी का सबब बनती है। औलाद जब नेक होती है तो माँ बाप का नाम दुनिया में रोशन करती है। औलाद जब नेक नहीं होती है तो माँ बाप की बदनामी का सबब बनती है। इसलिए जब भी दुआ मांगा करो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ के वसीले से दुआ मांगा करो, मौला हमें भी नेक औलाद अता फरमा, मौला हमें भी नेक बेटा अता फरमा। क्योंकि औलाद जब नेक होगी तो कुरान पढ़ने वाली होगी, औलाद जब नेक होगी तो नमाज पढ़ने वाली होगी, औलाद जब नेक होगी तो नबी पे दुरूद पढ़ने वाली होगी, औलाद जब नेक होगी तो नबी की शरीयत की पाबंद होगी, औलाद जब नेक होगी तो मदीने वाले मुस्तफा की सच्ची गुलाम और
और वफादार होगी। औलाद जब नेक नहीं होगी तो वो माँ बाप की बदनामी का सबब बनती है, माँ बाप की बदनामी का जरिया बनती है और माँ बाप का सर शर्म से झुक जाता है औलाद की वजह से। हजरात गिरामी, आज मैं आपको बताता हूँ नेक औलाद का क्या सिला मिलता है। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर एक कब्र की तरफ से होता है। आपने देखा कि कब्र के अंदर अजाब हो रहा है। हजरत इस वाक़े को अल्लामा राजी अलैहिर्रहमान ने तफसीर कबीर के अंदर लिखा है। बिस्मिल्लाह शरीफ के फजाइल में आप लिखते हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलाम कब्र के करीब से गुजरे, आपने देखा कब्र के अंदर अजाब हो रहा है। आप कुछ दिन के बाद वापस तशरीफ लाते हैं, उसकी कब्र में रहमत और नूर की बारिश हो रही है, उसकी कब्र बुक्काए नूर बनी हुई है, उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनी हुई है। इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र सुनने वालों, आओ जरा देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, मौला मुझे नेक बेटा अता फरमा दे। औलाद नेक होती है तो इसका फायदा क्या मिलता है। अल्लामा फखरुद्दीन राजी अलैहिर्रहमा तफसीर कबीर के अंदर लिखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो देखा कि उसकी कब्र में रहमत और नूर की बारिश हो रही है, उसकी कब्र बुक्काए नूर बनी हुई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला तू तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, मौला तू तो दिलों के खतरात से वाकिफ है, मौला तू तो दिलों के राज जानता है। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, तू तो दिलों के राज से वाकिफ है। ऐ मेरे मौला, इस कब्र के अंदर जब मैं गुजरा था तो अजाब हो रहा था, आज इसकी कब्र रहमत नूर की बारिश हो रही है, आज इसकी कब्र में अनवार की बारिश हो रही है, आज इसकी कब्र बुक्काए नूर बनी हुई है, आज इसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनी हुई है। ऐ मेरे मौला, इसमें क्या हिकमत है मौला जाहिर फरमा दे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल होती है, रब इरशाद फरमाता है ये जब मरा था तो बहुत बड़ा गुनहगार था, ये बहुत बड़ा सियाहकार था, शियार था, खताकार था, लायक सजावार था, इसलिए इसको इसके गुनाहों की सजा मिल रही थी। लेकिन जब ये मरा था तो अपनी बीबी की गोद में एक बच्चा छोड़ करके आया था और मरने से पहले इसने ये वसीयत की थी कि मेरे बच्चे को शरीयत का इल्म देना, मेरे बच्चे को दीन का इल्म देना। आज जब वो बच्चा बोलने लगा है तो उसकी माँ उसको एक आलिम के पास लेकर के गई है और उस आलिम साहब ने कहा कि बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम सिखाया। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ये बंदा गुनहगार था, ये बंदा खताकार था, जब ये मरा था तो अपनी बीबी से कह के आया था कि मेरे बच्चे को शरीयत का इल्म देना, मेरे बच्चे को दीन का इल्म देना। आज उस बच्चे ने जमीन पर मुझे रहमान और रहीम पुकारा है, मेरी रहमत को ये गवारा नहीं हुआ जिसका बच्चा मुझे रहमान और रहीम पुकारे और मैं उसके बाप को यहाँ अजाब दूं। वो मेरा नाम जमीन पर ले रहा था, मैंने उसके बाप को यहाँ बख्श दिया है। तो औलाद नेक होती है तो माँ बाप के लिए दुआ का सबब बनती है। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं इज़ा मातल इंसानो इनक़ता अन्हु अमलुहु, जब इंसान मर जाता है तो उससे उसके नामा आमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है। अब ना कोई नेकी लिखी जा सकती है ना कोई बुराई लिखी जा सकती है। लेकिन तीन चीजें ऐसी हैं जिनका सवाब मरने के बाद भी इंसान को मिलता रहता है। इल्ला मिन सलास, तीन चीजें ऐसी हैं जिनका सवाब मरने के बाद भी इंसान को मिलता रहता है। और सदक़तिन जारियतिन, एक सदक़ा जारिया है। सदक़ा जारिया किसे कहते हैं? सदक़ा जारिया अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए रब की राह में जो माल खर्च किया जाता है उसे सदक़ा जारिया कहा जाता है। मसलन कोई गरीब है, उसे आपने अगर नंगा है कपड़े दे दिए, ये सदक़ा जारिया है। कोई भूखा है, उसे आपने अल्लाह की रजा के लिए खाना खिला दिया, ये सदक़ा जारिया है। कोई प्यासा है, आपने उसको पानी पिला दिया, ये सदक़ा जारिया है। लोग गुजर रहे हैं, आना जाना लोगों का लगा हुआ है, कोई चौराहा है वहां पर आपने नल गड़वा दिया या कुआं खुदवा दिया, अल्लाह की रजा के लिए लोग पानी पी रहे हैं, शिकम सैर होकर के जा रहे हैं, ये सदक़ा जारिया है। इसका सवाब मरने के बाद भी इंसान को मिलता रहता है। हज़रात गिरामी, और अगर मस्जिद के अंदर कोई चीज खराब हो गई है, मसलन बल्ब खराब हो गया है या पंखा खराब हो गया है या लोटों की जरूरत है या नल में खराबी है या टंकी में खराबी है, आपने वो काम करा दिया अल्लाह की रजा के लिए, ये भी सदक़ा जारिया है। इसका सवाब भी मरने के बाद इंसान को मिलता रहता है। मदरसों के अंदर जरूरत है, आपने किताबें पहुंचा दी, ये भी सदक़ा जारिया है। तालिबे इल्मों का खाना लगा लिया, आप खाना खिला रहे हैं, ये भी सदक़ा जारिया है। और सुनो,
मदरसे के अंदर किसी चीज की जरूरत है, आपने उस चीज को दे दिया, मसलन बल्ब की जरूरत है, आपने बल्ब लगा दिया, जमीन पर बैठने के लिए मैट की जरूरत है, आपने मैट मदरसे में भिजवा दी, बच्चे बैठ करके उस पर कुरान की तिलावत कर रहे हैं, टिपाई बना करके मदरसे में भिजवा दी, बच्चे कुरान रख करके उस पर अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहे हैं। ये सब सदका जारिया है, ये ऐसा सदका है अगर कोई इंसान इसको करेगा तो इसका सवाब मरने के बाद भी उसको कयामत तक मिलता रहेगा। दूसरी बात, औ इल्मिन युन्तफ़अु बिही, और एक या ऐसा इल्म छोड़ा कि जिससे दूसरे फायदा हासिल कर रहे हों, यानी किसी शख्स को आपने कुरान पढ़ा दिया, कुरान पढ़ाने के बाद में उसने दूसरे को पढ़ाया, उसने और किसी को पढ़ाया, ये सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। इंसान दुनिया से चला जाता है, कुरान पढ़ाने वाला दुनिया से चला जाता है, इल्म दीन सिखाने वाला दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसके नामे अमाल के सिलसिला अब इसमें जो है नेकियां जो लिखी जा रही हैं, कुरान पढ़ाने वाले के नामे अमाल में वो नेकियां कयामत तक लिखी जाती रहेंगी। नेकियां क्योंकि औ इल्मिन युन्तफ़अु बिही, या ऐसा इल्म छोड़ा जिससे दूसरे फायदा हासिल कर रहे हो, ये सिलसिला मुनक़ता नहीं होता है, बल्कि ये सिलसिला कयामत तक जारी रहता है, उसके नामे अमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। हज़रात गिरामी, या कोई किताब लिख करके चला गया जिससे लोग पढ़ कर के फायदा हासिल कर रहे हैं, तो इसका सवाब भी मरने के बाद इंसान को कयामत तक मिलता रहेगा। हज़रात तीसरी बात जो मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाई, नबी इरशाद फरमाते हैं, ओ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, या ऐसी औलाद छोड़ करके गया जो अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रही हो, जो अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ कर रही हो। हज़रात गिरामी, औलाद जब नेक होती है तो नमाज की पाबंद होती है, औलाद जब मुत्तकी होती है तो नमाज की पाबंद होती है, औलाद जब सालेह होती है तो माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती है, औलाद जब नेक होती है तो माँ बाप के लिए दुआएं मग़फ़िरत करती है, और नमाज पढ़ने के लिए जब नेक औलाद जाएगी तो यही दुआ करेगी, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे माँ बाप को बख्श दे और मोमिनीन और मोमिनात को बख्श दे। जब ये दुआ नमाज में बंदा करेगा, अपने माँ बाप के लिए करेगा, मोमिनीन और मोमिनात के लिए करेगा, परवरदिगार आलम उसके माँ बाप को वहां बख्श देगा। तो ये है इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, है मेरे परवरदिगार मुझको नेक बेटा अता फरमा, क्योंकि औलाद जब नेक होती है तो माँ बाप की नेक नामी का सबब बनती है, औलाद जब नेक होती है तो माँ बाप के सरबलंदी का सबब बनती है, और औलाद जब नेक नहीं होती है तो माँ बाप की बदनामी का सबब बनती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, मौला मुझे नेक बेटा अता फरमा। परवरदिगार आलम ने बुर्दबार बेटे की बशारत सुनाई, बुर्दबार बेटे की खुशखबरी सुनाई। हजरत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई, और हजरत हाजरा के बतन मुबारक से हजरत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को देखते तो बड़े खुश होते, जब अपने बेटे इस्माईल को देखते तो बड़े खुश होते, आंखें ठंडी हो जाती। हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम मुबारक से कोई औलाद नहीं थी। हजरत सारा ने कहा हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, ये भी हुक्म रब्बी था कि आप हाजरा को और इस्माईल अलैहिस्सलाम को वादी गैर जी जरा में छोड़ करके आइए। वादी गैर जी जरा क्या, जहां पर आज मक्का मुकर्रमा आबाद है, इस सरजमीन पे छोड़ने के लिए कहा। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत हाजरा को साथ लिया और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लिया, और वादी गैर जी जरा में आप पहुंचे। ऐसी वादी जहां कोई खेती नहीं थी, बबूल के दरख्त नजर आ रहे थे, हर तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां नजर आ रही थी, फलों का कोई नामो निशान नहीं था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मक्के की सरजमीन पर पहुंचे, और जब आपने अपने बीबी और अपने लाडले को जब जंगल में छोड़ा और वापसी का जब इरादा किया, तब हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपकी बीबी हजरत हाजरा ने कहा, ऐ मेरे शौहर, आप हमको यहाँ किसके सहारे पे छोड़ करके जा रहे हैं? ऐ मेरे शौहर, आप हमको यहाँ किस लिए छोड़ करके जा रहे हैं? यहाँ तो कोई आबादी नहीं है, यहाँ पर तो कोई फलों का नामो निशान नहीं है, यहाँ पर तो कोई खेती का नामो निशान नहीं है।
حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے جب حضرت حاجرہ نے اصرار کیا تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت حاجرہ نے کہا کیا یہ پروردگار عالم کا حکم ہے، کیا یہ میرے رب کا حکم ہے؟ آپ نے سر ہلا کے کہا ہاں یہ پروردگار عالم کا حکم ہے، ہاں یہ میرے رب کا حکم ہے۔ جب اتنا کہا تب حضرت حاجرہ نے کہا اب آپ شوق سے جائیے، جس رب نے ہم کو یہاں پر رہنے کا حکم دیا ہے وہی رب ہماری حفاظت فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے آتے ہیں۔ جب آپ وہاں سے چلنے لگے آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو ایسی بستی میں بسایا ہے، ایسی آبادی میں بسایا ہے جہاں پر ایسی سرزمین پہ بسایا ہے جہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے، جہاں پر کوئی کھیتی نہیں ہے۔ اے میرے پروردگار ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما، اے میرے مولا اس سرزمین کو سرسبز و شاداب فرما۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا کہ پوری دنیا میں جو پھل نہیں ملتا ہے وہ پھل آپ کو مکے کی سرزمین پہ ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ آج وہ سرزمین سرسبز و شاداب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر کے آتے ہیں۔ حضرت حاجرہ کے پاس تھوڑی کھجوریں تھیں، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھوڑا سا پانی تھا، وہ کھجوریں چند دن میں ختم ہو گئیں، وہ پانی چند دن میں ختم ہو گیا، اور وہ کھجوریں اور وہ پانی چند دن میں ختم ہو گیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، شدت کی پیاس لگی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی تلاش میں دوڑی۔ آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ایک جگہ لٹا دیا اور حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑتی ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگاتی ہیں، دوڑ لگا رہی تھی حضرت حاجرہ۔ 7 چکر لگائے آپ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت حاجرہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اس کو نشانی بنا دیا، اور قیامت تک کے لیے حاجیوں کے لیے یہ ضروری قرار دے دیا کہ جب وہ حج کرنے کے لیے جائیں تب تک ان کا حج مکمل نہیں ہوگا جب تک حضرت حاجرہ کی سنت کو زندہ نہ کریں، جب تک حضرت حاجرہ کی سنت کو تازہ نہ کریں، جب تک صفا مروہ کی دوڑ نہیں لگائیں گے تب تک ان کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ حضرات پورا حج اللہ والوں کی یادگار ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ سنی مسرور ہو کر کے کرتا ہے اور وہابی مجبور ہو کر کے کرتا ہے۔ پورا حج اللہ والوں کی یادگار ہے۔ کسی دن موقع ملے گا تب آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ حضرت حاجرہ نے 7 چکر لگائے، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حاجیوں کے لیے یہ ضروری قرار دے دیا، تب تک ان کا حج مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ نہ لگائیں۔ حضرت حاجرہ جب 7واں چکر لگا کے واپس آ رہی تھی تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں پر لیٹے ہوئے ہیں وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہے، وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہے، وہ پانی کا چشمہ بہ رہا تھا۔ حضرت حاجرہ نے اس کی میل بنا کر کے اس سے کہا زم زم۔ حضرت حاجرہ نے جب کہا زم زم، جس کو سریانی زبان میں زمزم کہا جاتا ہے، اس کا معنی آتا ہے تھم تھم، یعنی رک جا۔ حضرت حاجرہ نے جب اس کو زمزم کہا وہ پانی وہیں پر رک گیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر حضرت حاجرہ زمزم نہیں کہتی، مفسرین کرام نے فرمایا کہ مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر حضرت حاجرہ زمزم نہیں کہتی تو آج وہ پانی پوری دنیا میں پہنچ جاتا۔ حضرت حاجرہ نے اس پانی کو زمزم کہہ کے وہیں پر ہی روک دیا۔ حضرات اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پانی نکلا، وہ زمزم شریف ہے۔ اور آج زمزم شریف کی یہ خاصیت ہے کہ زمزم شریف جو ہے وہ بھوک کا بھی کام کرتا ہے اور پیاس کا بھی کام کرتا ہے۔ زمزم شریف کی خاصیت یہ ہے کہ زمزم شریف کو آپ جب پیئیں گے تو آپ کی بھوک اور پیاس دونوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور زمزم شریف کی یہ بھی خاصیت ہے کہ زمزم شریف کے پانی کو جس نیت سے آپ پیئیں گے، جس بیماری میں شفا کی نیت سے آپ پیئیں گے، پروردگار عالم اس بیماری سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ زمزم شریف کی برکت ہے، یہ زمزم شریف کی خاصیت ہے۔ جس بیماری کے تعلق سے آپ پیئیں گے، اللہ اپنی بی بی حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسی سرزمین پر چھوڑ کر کے آئے جہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، جہاں پر کوئی بستی نہیں تھی،
जहां पर कोई सरसब्ज व शादाब जगह नहीं थी, जहां पर खेती का नामो निशान नहीं, जहां फल फ्रूट का नामो निशान नहीं, हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वहां से वापस होने लगे तब हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दामन पकड़ लिया और कहा, ऐ मेरे सरताज, आप हमको यहाँ किसके सहारे पे छोड़ करके जा रहे हैं? ऐ मेरे शौहर, आप हमको यहाँ पर क्यों छोड़ करके जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खामोशी को देखा तो कहा कि क्या अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सर हिला के कहा, हाँ ये परवरदिगार आलम का हुक्म है। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब इतना सुना तो आपने कहा कि अब आप शौक से जाइए, परवरदिगार आलम ने हमको यहाँ रहने का हुक्म दिया है, वो रब ही हमारी हिफाजत फरमाएगा, वो रब ही हमारा मुहाफिज़ो निगहबान है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे हैं। आपने रब की बारगाह में दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद को वादी गैर ज़ी ज़रा में बसा दिया है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद को यहाँ बसा दिया है। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐसी जगह पे बसाया है जहाँ पर कोई खेती नहीं होती, जहाँ पर कोई फल फ्रूट नहीं है। मौला ऐसी सरजमीन पर बसाया है मौला जहाँ पर कोई आबादी नहीं है, हर तरफ पहाड़ों के पहाड़ ही पहाड़ हैं, हर तरफ बबूलों के दरख्त ही नजर आ रहे हैं। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करके जा रहे हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद को बसा दिया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़ी दूर की दुआ कर रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, मैंने अपनी कुछ औलाद को बसा दिया है। देखो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो मुबारक नूर जो इनकी पेशानियों से होता हुआ हजरत अब्दुल्ला की मुबारक पेशानी में आता है और हजरत अब्दुल्ला की सुल्ब से होता हुआ हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के रहम मुबारक में पहुंचता है। और मेरा आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 रबीउन नूर को जब मक्के की सरजमीन पे तशरीफ लाते हैं तो अल्लामा हसन पुकार के कहते हैं, सुबह पुरनूर है जमाना, सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका, सुबह शबे विलादत, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक इन पेशानियों से होता हुआ आया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, मैंने अपनी कुछ औलाद को बसा दिया है। बसाया तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को था। ये कुछ औलाद का मतलब क्या है? मतलब यही है कि बज़ाहिर मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन मुबारक पेशानियों में मेरे आका का नूर होता हुआ आया है, इसलिए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जरिए यहाँ पर आबादी होगी। इस्माइल अलैहिस्सलाम के जरिए यहाँ पर एक खानदान आबाद होगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम के जरिए यहाँ पर एक बस्ती आबाद होगी और होता भी यही है। मेरे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करके आते हैं, मौला मैंने अपनी कुछ औलाद को बसा दिया है। कहाँ बसाया है? इंदा बैतिकल मुकर्रम, ऐ मेरे मौला तेरे इज्जत वाले घर के बराबर में बसाया है, तेरे इज्जत वाले घर के कुर्ब में बसाया है। अल्लाह अकबर। पता चला मस्जिदों के बराबर में आबाद होना ये बरकत का सबब है, मस्जिदों के बराबर में आबाद होना ये खैर और बरकत का बाइस है। आज इंसान कहता है कि मैं अपने घर को छोड़ के जा रहा हूँ। पूछा गया कि क्यों छोड़ रहा है? कहता है कि मेरे घर के बराबर में मस्जिद है। मौलाना ऐलान करते हैं मेरे बच्चे परेशान होते हैं, मस्जिद में 5 वक्त अजान होती है, मेरे बच्चों की नींद खराब हो जाती है। अल्लाह अकबर। जरा सोचो तो सही, मस्जिद का पड़ोसी होना बड़ी सआदत मंदी की बात है, मस्जिद का पड़ोसी होना बड़ी अकल सआदत मंदी की बात है, मस्जिद का पड़ोसी होना ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। अल्लाह अकबर। आज दुनिया का हाल ये है कि पड़ोसी का हक पड़ोसी के ऊपर होता है। मदीने वाले मुस्तफा ने एक बार मर्तबा फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता ला यदखुलुल जन्नता ला यदखुलुल जन्नता। 3 मर्तबा फरमाया। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कौन जन्नत में दाखिल नहीं होगा? नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसकी वजह से उसका पड़ोसी परेशान हो, जो अपने पड़ोसी को सताता
खाता हो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। पड़ोसी का हक बहुत बड़ा होता है, पड़ोसी का मकाम बड़ा होता है। अल्लाह अकबर, जरा देखो तो सही, मस्जिद का पड़ोस होना खैर व बरकत का सबब होता है। मस्जिद का पड़ोसी होना ये खैर व बरकत का बाइस होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को बसा के जा रहे हैं। कहां बसा के जा रहे हैं? इंदा बैतुल मुकर्रम, खाना काबा के बराबर में बसा के जा रहे हैं। इज्जत वाले घर के बराबर में बसा के जा रहे हैं, हुर्मत वाले घर के बराबर में बसा करके जा रहे हैं। और दुआ करके आप तशरीफ ले जाते हैं। इधर हजरत हाजरा के पास में जो थोड़ा सा सामान था, वो खजूरें थी, वो खत्म हो जाती हैं, पानी भी खत्म हो जाता है। अब हजरत हाजरा पानी की तलाश में निकली। आपने सफा मरवा के दरमियान दौड़ लगानी शुरू कर दी। जब आप सफा मरवा के दरमियान दौड़ लगा रही थी, एक चक्कर लगाती, सफा से मरवा पे जाती और मरवा से देखती इस्माइल अलैहिस्सलाम को कि कहीं कोई दरिंदा तकलीफ ना पहुंचा दे, कहीं कोई जानवर तकलीफ ना पहुंचा दे। आप दौड़ करके फिर मरवा पे आती और मरवा पे देख करके अपने बेटे को फिर सफा की तरफ जाती। अल्लाह अकबर, जरा देखो तो सही, 7वां चक्कर हजरते हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने लगाया। उसके बाद क्या देखती हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम एड़ी रगड़ रहे हैं। आपकी मोहब्बत दिल के अंदर जाग जाती है और बेटे की मोहब्बत दिल के अंदर ऐसी अंगड़ाई लेती है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। समझ रही थी मेरा बेटा भूख से शिद्दत से पैर रगड़ रहा है, मेरे बेटे को प्यास की शिद्दत है इसलिए पैर रगड़ रहा है, मेरे बेटे को भूख की शिद्दत है इसलिए पैर रगड़ रहा है। आपने समझा कि मेरा बेटा भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से पैर रगड़ रहा है। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब आती है तो क्या देखती है कि जमजम शरीफ वहां से जारी हो चुका है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जहां एड़ियां रगड़ी हैं वहां से पानी का चश्मा जारी हो गया। हजरत हाजरा ने उसकी मेंढ बांधते हुए कहा जमजम, यानी रुक रुक, थम थम। हजरत मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा अगर उस पानी को जमजम ना कहती, यानी रुक रुक थम थम ना कहती, तो आज वो पानी पूरी दुनिया में फैल जाता और आज हर इंसान के पास वो पानी पहुंच जाता। अल्लाह अकबर, हजरत हाजरा ने उस जगह पे मेंढ बांध करके उस पानी को वहीं पर रोक दिया। अल्लाह अकबर, वो पानी इतना बरकत वाला हो गया, वो पानी इतना मुतवर्रक हो गया, जिस पानी में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदम लग जाएं, एक पैगंबर के कदम से लगने वाले पानी के अंदर वो बरकत आ जाती है, वो तासीर आ जाती है कि मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जमजम को जिस नीयत से पियोगे जमजम उसी में फायदा देता है। अगर बीमारी से शिफा के लिए पियोगे तो जमजम बीमारी से शिफा अता फरमाता है। अगर जमजम को प्यास बुझाने के लिए पियोगे तो जमजम प्यास बुझाएगा। जमजम को भूख मिटाने के लिए पियोगे तो जमजम भूख मिटाएगा। जमजम को जिस लिए पियोगे जमजम उसी में काम करता है। हजरत गिरामी हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं, जब आबे जमजम को आपने पिया तो जमजम शरीफ को पीते वक्त आपने दुआ की थी, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं इस जमजम शरीफ को इस नीयत से पी रहा हूं ताकि कयामत की तिश्नगी से बच जाऊं, ताकि कयामत की तिश्नगी मुझे न सताए। अल्लाह अकबर, ये जमजम शरीफ वो पानी है कि इसको जिस नीयत से पियोगे ये उसमें फायदा देता है। और पानियों की खासियत ये होती है कि आप उनको 2 दिन के लिए रखोगे, पानी तबद्दुली इख्तियार कर लेता है। और पानी अगर 1 महीने तक रख लिया जाए तो पानी के अंदर तब्दीली आ जाती है, बदलाव आ जाता है। लेकिन जमजम शरीफ की वो शान है, जमजम शरीफ वो पानी है कि इसको आप सालों तक रखते रहो, पानी के अंदर तब्दीली नहीं आएगी, पानी के अंदर तगय्युर नहीं आएगा। जैसा जमजम शरीफ कुएं से निकला है वैसा ही पानी रहेगा, क्योंकि उसके अंदर तगय्युर तब्दीली नहीं आती है। और जमजम शरीफ के लिए मुस्तहब है कि खड़े होकर के पिया जाए। अल्लाह अकबर, वो पानी जिसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से निस्बत हो जाए, कदम से निस्बत हो जाए, वो पानी इतना मुतवर्रक हो जाता है कि उस पानी को खड़े होकर के पीने का हुक्म है। तो सोचो, मदीने वाले मुस्तफा जिनके सदक़े में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नबुव्वत मिली, जिनके सदक़े में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हिल्म बुर्दबारी मिली, उस पैगंबर के ऊपर सलातो सलाम खड़े होकर के पढ़ा जाए तो इसमें शिर्क का फतवा क्यों लगाया जाता है? अल्लाह अकबर, जमजम शरीफ वो पानी है इसको जिस नियत से पियोगे ये उसी में फायदा देता है। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी माँ के पास रह रहे हैं। एक कबीला उधर से गुजर रहा था जिसे कबीला बनी जुरहुम कहा जाता है। उन्होंने वहां पर परिंदे उड़ते हुए देखे, वहां पर उन्होंने पानी देखकर चश्मा देखा, तो हजरत हाजरा से इजाजत मांगी कि हम यहीं
पर ठहरना चाहते हैं। हजरत हाजरा ने इजाजत दे दी। हजरत गिरामी, अब वक्त गुजरता गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ जब 13 साल के करीब हो जाती है, बाद रिवायतों में आया है कि 15 के करीब हो जाती है हजरत गिरामी, तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब आता है। आपने ख्वाब में देखा कि कोई आवाज देने वाला आवाज दे रहा है कि इब्राहिम उठो और अपने रब के लिए कुर्बानी करो। आप सुबह को बेदार होते हैं, आपने 100 ऊंट राह खुदा में कुर्बान कर दिए। दूसरी रात सोए तो फिर यही ख्वाब आता है, फिर आपने 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। तीसरी रात फिर आपको यही ख्वाब आता है। आपने अर्ज किया किस चीज को कुर्बान करूं? कहा उस चीज को कुर्बान करो जो तुम्हें प्यारी है, जो तुम्हें अजीज है। आप समझ गए मेरे बेटे की कुर्बानी मुझसे मांगी जा रही है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मांगी जा रही है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते हैं, हजरत हाजरा से कहते हैं मैं और मेरा बेटा एक दावत पे जाना चाह रहे हैं, मेरे बेटे को तैयार कर दिया जाए। हजरत हाजरा ने तैयार कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर के चलते हैं, हाथ में रस्सी ली और आस्तीन के अंदर छुरी रख ली। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब चले और जब मकामे मिना में पहुंचे, तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, पूरा वाकया कुरान के अंदर है, लेकिन इसको बताने से पहले आप ये सुनिए कि इब्लीस लईन के पेट में दर्द उठता है। वो हजरत हाजरा के पास आता है और आकर के कहता है हाजरा तुम्हें पता है तुम्हारे शौहर तुम्हारे लाल को कहां ले गए हैं? तुम्हारे शौहर तुम्हारे बेटे को कहां ले गए हैं? कहा वो एक दावत पर गए हैं। कहा सुनो वो बेटे को कुर्बान करने के लिए ले गए हैं। हजरत हाजरा ने कहा क्या कोई बाप भी अपने बेटे को कुर्बान करता है? कहा हाँ उन्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है। कहा अल्लाह ने हुक्म दिया है तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? मेरा बेटा इब्राहिम और मेरा बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ही ने पैदा किया है। हजरत हाजरा कहती हैं ये उसी की अमानत है, वो जैसे चाहे वैसे वापस ले ले, मैं कौन होती हूँ बीच में रुकावट बनने वाली? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, बता मेरे लाल तेरी क्या मर्जी है? हजरत जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि बेटे मैंने ख्वाब देखा है, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फउंजुर माज़ा तरा, पूरा वाकया कुरान में आया है कि बेटा मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, बता तेरी क्या मर्जी है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा या अबा तिफ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, ऐ मेरे वालिद जिस चीज का आपको हुक्म दिया गया है आप वो काम कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा बाप भी राजी है बेटा भी राजी है। शैतान के पेट में दर्द हो रहा है, शैतान ने रास्ते में बहकाना चाहा था। शैतान ने हजरत हाजरा से कहा कि तुम्हारे बेटे को कुर्बान करने के लिए ले गए हैं, वहां पर दाव नहीं चला। इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा रास्ते में कि तुम्हारे वालिद तुम्हें कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये एक जान क्या है, अगर हजारों जाने हो तब भी उस रब की राह में मैं कुर्बान होता हुआ चला जाऊंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा ए इब्राहिम तुमने एक ख्वाब को सच्चा समझ लिया है, ख्वाब झूठे भी तो होते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकरियां उठाई, 7 कंकरियां उठा करके और इब्लीस के मारी और फरमाया कि नबी का ख्वाब झूठा नहीं होता है बल्कि नबी का ख्वाब वही इलाही होता है। मरदूद दूर हो जा, शैतान के कंकरी मारी। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि कयामत तक हज करने वालों के लिए ये जरूरी करार दे दिया कि जब वो हज करने के लिए जाएं तब तक उनका हज मुकम्मल नहीं होगा जब तक वो शैतान को कंकरी नहीं मार लेंगे। अल्लाह अकबर, जरा देखो तो सही, जब मकामे मिना में पहुंचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहते हैं मेरे लाल मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, बता मेरे बेटे तेरी क्या मर्जी है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे वालिद आपको जिस चीज का हुक्म दिया गया है आप वो काम कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अब जब बाप बेटे दोनों राजी हो गए, अल्लाह का कुरान कहता है फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, जब बेटा राजी हो गया तो बाप ने अपने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अर्ज की मेरे वालिद आप मुझे कुर्बान करने से पहले मेरी 2-3 बातें हैं, आप गौर से सुन लीजिए। फरमाया क्या है बेटा? कहा मेरे हाथ और पैरों को रस्सी से मजबूती से बांध दो ताकि मेरा जिस्म तड़पे और खून का छींटा आपके कपड़ों पे न लग जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं और आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, कहीं बेटे की मोहब्बत में
बेटे की मोहब्बत में आप इस सादत उज़्मा से अपने हाथ को न रोक दें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा, और कहा तीसरी बात मेरी ये है कि मेरा खून में आलूद कुर्ता मेरी अम्मी को दे देना, ताकि वो इसको देख करके अपने दिल को सुकून पहुंचा लिया करेंगे। जब भी उनको उनके बेटे की याद आएगी तो वो इस कुर्ते को देख करके अपने दिल को सुकून पहुंचा लिया करेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा मुझे मंजूर है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लिटा दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी निकाली और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे चलाना चाहिए। रब के फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज की, मेरे परवरदिगार, आज इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान कर दिया। मौला ये रस्म पड़ जाएगी, रिवाज पड़ जाएगा, फिर हर बाप को अपना बेटा कुर्बान करना पड़ेगा। अरे मेरे परवरदिगार, ऐसा मंजर चश्मे फलक ने आज तक नहीं देखा है। अरे मेरे परवरदिगार, आज एक बाप अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहा है। रब ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों तुमने ही तो कहा था कि तेरा इब्राहिम अब पहले जैसा नहीं रहा, तेरा इब्राहिम अब औलाद से ज्यादा मोहब्बत करता है, तेरा इब्राहिम अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता है। अरे मेरे फरिश्तों देख लो, मेरा इब्राहिम ना अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता है, ना अपने माल से ज्यादा मोहब्बत करता है, ना अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करता है। इब्राहिम मोहब्बत करता है तो अपने परवरदिगार से मोहब्बत करता है। इब्राहिम मोहब्बत करता है तो अपने खालिक हकीकी से मोहब्बत करता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के हल्क पे छुरी चला रहे हैं, छुरी कुंद हो जाती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर पे छुरी को तेज किया, फिर बेटे के हल्क पे रखा, फिर छुरी कुंद हो जाती है। आपको जलाल आता है, छुरी को पत्थर पर मारते हैं, छुरी पत्थर के दो टुकड़े कर देती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी से कहा है, छुरी इस्माइल का गला तो रेशम से भी ज्यादा नरमो नाजुक है, तूने इस्माइल के गले को नहीं काटा और पत्थर जैसी सख्त चीज के तूने दो टुकड़े कर दिए। तो छुरी जुबाने हाल से कहती है, अल खलीलो यामुरनी वल जलीलो ला यनहानी। ऐ इब्राहिम, तुम मुझसे कहते हो कि काट, और जलील हुक्म देता है खबरदार अगर तूने इस्माइल के एक बाल भी बेका किया, मैं किसके हुक्म को मानूं? ऐ इब्राहिम, जिस रब के हुक्म से तुम यहाँ कुर्बानी करने के लिए आए हो, उसी रब का मुझे हुक्म है। तुम एक मर्तबा मुझसे कहते हो छुरी के काट, और वो रब मुझसे 70 मर्तबा फरमाता है खबरदार अगर इस्माइल के हल्क को काटा। अब बताओ मैं उस रब के हुक्म के आगे मजबूर हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ छुरी मैं राजी हूँ, मेरा बेटा राजी है, फिर तू बीच में रुकावट क्यों बनती है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अज़्म मुसम्मम किया, पुख्ता इरादा किया अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करने का। छुरी उठा करके ले जा रहे थे हल्क की तरफ। परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल, जो दुम्बा जन्नत में चल रहा है 40 साल से या 80 साल से, उस दुम्बे को ले जा करके इस्माइल की जगह पे रख दो और इस्माइल को बचाओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिदरा से जन्नत जाते हैं और जन्नत से दुम्बा लेकर के मकाम मिना में पहुंचते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम को उठा करके खड़ा कर देते हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अलग खड़े हैं, दुम्बे को उनकी जगह पर रख दिया जाता है, दुम्बा कुर्बान हो रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि बेटा अलग मुस्कुरा रहा है और उनकी जगह पे दुम्बा कुर्बान हो जाता है। गैब से आवाज आती है, वनादैनहु अन्या इब्राहिम कद सदक़ता रुया व इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। ऐ इब्राहिम, तूने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया है और हम ihसान करने वालों को ऐसा ही बदला अता फरमाते हैं। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी करने के लिए मकाम मिना में पहुंच गए। बेटे को रब ने बचा दिया और उनकी जगह पे फिदिये में दुम्बा दे दिया और दुम्बा कुर्बान हो जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्तिक़लाल देखिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इस्तेहकाम देखिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार को क़यामत तक के मुसलमानों के लिए बाकी रखा है कि जो मालिक निसाब है वो कुर्बानी करे, क्योंकि कुर्बानी का जो दिन आता है 10वें ज़िलहिज्जा आती है, उस दिन परवरदिगार आलम को खून बहाने से बेहतर इब्ने आदम का कोई अमल पसंद नहीं है। इब्ने आदम का सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल जो है वो
خون بہانا ہے، یعنی قربانی کرنا ہے۔ ہر مالک نصاب کے اوپر قربانی واجب ہے، ہر مالک نصاب کے اوپر قربانی واجب ہے، لیکن مالک نصاب کہتے کس کو ہیں؟ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان دونوں میں سے کسی کی قیمت اس کے پاس ہے تو وہ مالک نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ کسی جس کے پاس 35,000 یا 40,000 روپے ہیں تو وہ مالک نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، اس لیے وہ قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے، اس دن قربانی کرنا چاہیے۔ پروردگار عالم کو 10ویں ذی الحجہ ابن آدم کا سب سے زیادہ مقبول عمل ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل ہے تو وہ قربانی کرنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی سرزمین پر قربانی کے بعد وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوتے ہیں اور آپ کی قبیلہ بنی جرہم میں شادی کر دی جاتی ہے۔ ایک بار ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے، آپ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اسماعیل کہاں ہیں؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ وہ شکار کے لیے گئے ہیں۔ پوچھا کہ زندگی کیسے کٹ رہی ہے؟ تو کہا کہ زندگی بڑی پریشانیوں میں کٹ رہی ہے، وہ شکار کو چلے جاتے ہیں، گھر میں بچے ہم لوگ پریشان رہتے ہیں۔ حضرات گرامی، جب یہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب اسماعیل آ جائیں تو ان سے کہنا کہ وہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دیں، یہ کہا اور ابراہیم علیہ السلام پھر ملک شام تشریف لے گئے۔ دوسری، جب اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس آئے تو آپ نے فرمایا مجھے میرے والد کی خوشبو آ رہی ہے۔ پوچھا تو کہا کہ ہاں ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے آپ کے بارے میں پوچھا تھا اور گھر کے حالات کے بارے میں بھی پوچھا تھا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اسماعیل سے کہہ دینا کہ وہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں کیونکہ تو ناشکری ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے طلاق دے دی، دوسرا نکاح کیا اسماعیل علیہ السلام نے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دن کے بعد واپس تشریف لائے، آپ نے پوچھا کہاں ہیں؟ تو بتایا کہ وہ شکار کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ پوچھا کیسے کٹ رہی ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے بہت آرام سے کٹ رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسماعیل آ جائیں تو ان سے کہنا کہ وہ اس چوکھٹ کو برقرار رکھیں۔ اللہ اکبر، یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ہیں۔ آپ کو حکم ہوتا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیتے ہیں اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ اور میرے ابراہیم کی مدد کرو۔ جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ جبرائیل علیہ السلام بتاتے جاتے تھے۔ اب یہاں پر مختلف روایات ملتی ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہوئی ہے وہ کئی مرتبہ ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کعبے کی تعمیر ہوئی تھی اور پھر آدم علیہ السلام نے بھی کعبے کی تعمیر کی ہے اور آدم علیہ السلام تقریباً 9 مرتبہ یا 11 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ حضرات گرامی، اب ذرا اپنے ذہن کو قریب کرو، خانہ کعبہ کی تعمیر کیسے ہوئی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کعبے کو کیسے تعمیر کیا ہے؟ جب طوفان نوح آیا تو کعبہ شہید ہو گیا، زمین پر سوائے بنیادوں کے اور کوئی نشان نہیں تھا۔ حجر اسود کو فرشتوں نے اٹھا کر کے ابو قبیس پہاڑی کے اندر چھپا دیا تھا۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کرنی چاہی تو رب کی بارگاہ میں عرض کی میرے پروردگار میں کعبے کی تعمیر کہاں سے کروں؟ حضرات گرامی، تو غیب سے ایک بادل آتا ہے اور آ کر کے جہاں کعبے کی حدود تھی وہاں پر سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہاں کعبہ تعمیر کرنا ہے۔ پروردگار عالم نے اس بادل کو یہ انعام عطا فرمایا کہ
बादल को हुक्म दिया कि ऐ बादल, जैसे तू काबे के साए में साया फिगन हो गया है, ऐसे ही तुझे ये इनाम मिलता है कि जब मेरा महबूब मक्के की सरजमीन पर आए तो जहां जहां मेरा महबूब जाए तो उसके ऊपर साया फिगन होता हुआ जाना, तू उसके ऊपर साया करते हुए जाना। वो बादल का टुकड़ा मदीने वाले मुस्तफा पे साया करता हुआ चलता था हजरात। और एक रिवायत में आता है कि काबे की तामीर के लिए परवरदिगारे आलम जो जगह थी, उस जगह को बताने के लिए परवरदिगारे आलम ने एक मकड़ी को पैदा फरमाया, और वो मकड़ी जहां जहां जाती थी वहां पर रोशनी होती थी। काबे की बुनियादें उसके जरिए पता चल गईं, और मकड़ी को अल्लाह ताला ने ये इनाम अता फरमाया, ये इनाम अता फरमाया, हुक्म दिया कि जब मेरा महबूब मक्के से हिजरत करके मदीने को तशरीफ ले जाए, और जब वो गारे सौर के अंदर बैठे तो मकड़ी को हुक्म दिया था कि तुझे ये इनाम दिया जाता है कि तू मेरे महबूब के लिए गार के दरवाजे पे जाला तान देना, जाला बुन देना। हजरात गिरामी, एक रिवायत में है कि एक बिजली, चमकदार कड़कदार बिजली आई और आकर के उस जगह पर गिरी जहां पर खाना काबा की तामीर है, और उस जगह को चमकदार बना दिया जहां जहां काबे की बुनियादें थी। हजरात गिरामी, अल मुख्तसर ये कि काबे की तामीर हो रही है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम गारा लेकर के आते, इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लेकर के आते। काबे की तामीर में 5 पहाड़ों के पत्थर लगे हैं, 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में है। कोहे जूदी का पत्थर काबे की तामीर में है, कोहे लुबनान का पत्थर काबे की तामीर में है, कोहे हिरा का पत्थर काबे की तामीर में है, कोहे तूर सीना का पत्थर काबे की तामीर में है, कोहे हिरा का पत्थर काबे की तामीर में है। 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगे हैं। ये 5 पहाड़ों ही के पत्थर काबे की तामीर में क्यों लगे? पहाड़ तो दुनिया में और भी हैं, बड़े बड़े पहाड़ दुनिया में हैं, लेकिन इन्हीं 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में क्यों लगे? तो सुनो, इन 5 पहाड़ों को अल्लाह के मुकद्दस बंदों से निस्बत है, अल्लाह के मुकद्दस नेक बंदों से निस्बत है, इसलिए इन 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगे। जैसे कि कोहे हिरा को निस्बत हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है, जो लंका में पहाड़ है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उसी पहाड़ के ऊपर तशरीफ लाए थे। और कोहे सीना को भी निस्बत, कोहे सीना को भी निस्बत है, कोहे जूदी को भी निस्बत पैगंबर से है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ी से लगी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आग जो मिली थी वो तूर सीना पे जाकर के मिली थी। तूर के कोहे तूर जो है हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इसको निस्बत है। इसलिए इन 5 पहाड़ों को अल्लाह के मुकद्दस नेक बंदों से निस्बत है। इसलिए इन 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगाए गए। कोहे सीना का पत्थर काबे की तामीर में, कोहे जीना का पत्थर काबे की तामीर में, कोहे जूदी का पत्थर काबे की तामीर में, कोहे हिरा का पत्थर काबे की तामीर में, कोहे लुबनान का पत्थर काबे की तामीर में। 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में क्यों लगे? पहाड़ तो दुनिया में और भी हैं, इन्हीं 5 पहाड़ों के पत्थरों को काबे की तामीर में क्यों लगाया गया? तो सुनो प्यारे मुसलमानों, खाना काबा की तामीर होने के बाद में परवरदिगारे आलम ने इस उम्मत के ऊपर जो 5 वक्त की नमाज फर्ज की है, परवरदिगारे आलम ने 5 वक्त की नमाज तो मुसलमानों के ऊपर फर्ज की है। जो भी मुसलमान खुशू और हुजू के साथ में 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, परवरदिगारे आलम उसको 5 पहाड़ों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। इसलिए 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगे। इस्लाम के अरकान भी 5 हैं, नमाजें भी 5 हैं, काबे की तामीर में पत्थर भी 5 लगे हैं, 5 पहाड़ों के पत्थर लगे हैं। अल्लाह अकबर। जब काबे की तामीर मुकम्मल हो जाती है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पे खड़े होते हैं, वो पत्थर ऊपर उड़ता हुआ चला जाता है। हजरात, उसी पत्थर को आज मकाम इब्राहिम के नाम से याद किया जाता है, जिसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर आया है। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, तुम मकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बनाओ। आज हाजी हज करने के लिए जाते हैं, काबे के तवाफ से जब फारिग होते हैं तो मकाम इब्राहिम के पास में आकर के 2 रकत नमाज पढ़ते हैं। ये वही पत्थर है जिसके ऊपर खड़े होकर के इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर की थी। अब जब काबा तामीर हो गया, जब काबा बन गया, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की है, मेरे परवरदिगार ये तोहफा हमारी जानिब से कबूल फरमा और अपने उस पैगंबर को हमारी नस्ल में अता फरमा दे।
دعا کی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اے میرے پروردگار اس دعا کو قبول فرما لے، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر مکمل کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ اب اس گھر کے طواف کے لیے آئیں، لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ اب کعبے کے طواف کے لیے آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا میرے پروردگار میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے، اس کو پوری دنیا میں پہنچانا ہمارا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسی پتھر پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ پتھر بلند ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی مثل بلند ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی اے لوگو اللہ کا حکم ہے حج کرنے کے لیے آؤ، اے لوگو اللہ کا حکم ہے کعبے کے طواف کے لیے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ آواز دی حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آواز کو پوری دنیا میں پہنچا دیا اور پوری دنیا کے لوگوں نے اس آواز کو سنا۔ جو ماں کے شکم میں تھے وہ ماں کے شکم سے آواز دے رہے تھے لبیک اللہم لبیک، جو باپ کی صلب میں تھے وہ باپ کی صلبوں سے آواز دے رہے تھے لبیک اللہم لبیک۔ حضرات گرامی آج کا بدعقیدہ ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ تم یہاں سے ہندوستان سے کھڑے ہو کر کے نبی پہ سلام پڑھتے ہو، کیا تمہارے نبی سلام سنتے ہیں؟ حضرات گرامی آج تو سمجھانے کے لیے بہت سارے آلات موجود ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کہیں پر لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، کہیں پر لائیو پروگرام چلتا ہے تو چلتا وہ پروگرام بریلی میں ہے اور اسے سنا پوری دنیا میں جاتا ہے، وہ پروگرام چلتا تو پیلی بھیت میں ہے لیکن اس پروگرام کو پوری دنیا میں لائیو دیکھا جاتا ہے۔ کیسے یہاں پیلی بھیت کی آواز پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے؟ آج ان آلات کے اوپر تو انسان کا عقیدہ ہے وہ پروردگار عالم جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، جس نے ان آلات کو پیدا فرمایا، جس نے انسان کو یہ دماغ عطا فرمایا کہ وہ ایسی چیزیں ایجاد کر دے، اس رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آواز لگا رہے ہیں، آپ کی آواز کو اللہ نے پوری دنیا میں پہنچا دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے غلام ہندوستان سے کھڑے ہو کر کے مدینے والے مصطفیٰ پہ سلام پڑھیں تو پروردگار عالم ہمارے سلام کو فرشتوں کے ذریعے مدینے میں کیوں نہیں پہنچا دے گا؟ یقیناً ہمارے سلام کو مدینہ منورہ پہنچایا جاتا ہے۔ تبھی تو میرا امام پکار کے کہتا ہے ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرا کوئی بھی امتی جب مجھ پر رسمی طور پہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے درود کو فرشتے میری بارگاہ میں لے کر کے آتے ہیں، اور جب میرا عاشق، جب میرا دیوانہ، جب مجھ سے سچی محبت کرنے والا سچے دل سے مجھ پہ درود پڑھتا ہے اس کے درود کو میں خود اپنے کانوں سے سماعت کرتا ہوں، میں اس کے درود کو خود اپنے مقدس کانوں سے سنتا ہوں۔ میرا امام پکار کے کہتا ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پوری دنیا میں میرا رب پہنچا سکتا ہے، وہ رب قادر مطلق ہے، وہ رب مالک علی الاطلاق ہے، وہ رب احکم الحاکمین ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پوری دنیا میں پہنچا دیا۔ جو لوگ ماں کے شکم میں تھے وہ ماں کے شکم سے آواز دیتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اور جو باپ کی صلبوں میں تھے وہ باپ کی صلبوں سے آواز دیتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک مرتبہ حج کرنے جائے گا، جس نے 2 مرتبہ لبیک کہا وہ 2 مرتبہ حج کرنے جائے گا، جس نے 3 مرتبہ لبیک کہا ہے وہ 3 مرتبہ حج کرنے کے لیے جائے گا۔ یہ ہیں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام، مدینے والے مصطفیٰ کا نور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت کے طور پہ آیا، پھر حضرت ابراہیم کی پیشانی میں آیا، اور حضرت ابراہیم کی پیشانی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، پھر یہی نور امانت کے طور پہ پیشانیوں سے منتقل ہوتا ہوا، اصلاب طیبہ سے منتقل ہوتا ہوا، ارحام طیبہ سے منتقل ہوتا ہوا، مکے کی سرزمین پر حضرت عبداللہ کے گھر میں، حضرت عبد المطلب کے مکان میں، حضرت
आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम मुबारक से यही नूर दुनिया में तशरीफ लाया। मेरा इमाम पुकार के कहता है सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। हजरात, तो हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम की दो बीबियां, एक बीबी हजरत हाजरा और एक बीबी हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा हैं। हजरत हाजरा के बतन मुबारक से हजरत इस्माइल अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम पैदा हुए और हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बतन मुबारक से हजरत इसहाक अलैहि सलाम पैदा हुए। हजरत इसहाक अलैहि सलाम से बनी इसराइल अंबियाए बनी इसराइल का सिलसिला शुरू होता है और हजरत इस्माइल अलैहि सलाम की पेशानी से हजरत इस्माइल अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम की पेशानी में जो मदीने वाले मुस्तफ़ा का नूर रखा हुआ था, हजरत इस्माइल अलैहि सलाम और मेरे आका के बीच में कोई पैगंबर नहीं आया है। हजरत इस्माइल अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम के बाद मदीने वाले मुस्तफ़ा ही पैगंबर हैं और मदीने वाले मुस्तफ़ा अव्वल भी हैं आखिर भी हैं। मदीने वाले मुस्तफ़ा ही के सदक़े में तमाम अंबिया इकराम को पैदा किया गया, तमाम रसूलान निज़ाम को पैदा किया गया, तमाम दुनिया को पैदा किया गया है। सदका है मदीने वाले मुस्तफ़ा का। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम की आदत करीमाना थी कि हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पर कोई मेहमान नहीं आया, बहुत देर इंतजार करते रहे। फिर मेहमान की तलाश में आप निकले तो एक शख्स आपको मिला, बूढ़ा शख्स था, उसको आप लेकर के आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दस्तरखान पे बिठाया और जब बातचीत उससे हुई तो पता चला कि वो परवरदिगार आलम को नहीं मानता है, वो दीन इब्राहिमी पे कायम नहीं है। इब्राहिम अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम ने उसे बहुत दावत दी कि तू दीन इब्राहिमी में दाखिल हो जा। उसने कबूल नहीं किया। उसने कहा कि मैं पहले ही से जिस दीन पर हूँ उसी दीन पे कायम रहूंगा, खाना खिलाना हो तो खिलाओ, नहीं खिलाना हो तो मैं जाता हूँ। उसने ये कहा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दस्तरखान से उठ करके चला जाता है। अल्लाह अकबर। जब वो चला गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी चाहते थे कि जो दीन इब्राहिमी में नहीं है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पे खाना क्यों खाए। वो शख्स चला गया। अल्लाह अकबर। गैब से निदा आती है, आवाज आती है, इब्राहिम तूने उसे एक बार खाना नहीं खिलाया और हम उसको 70 साल के करीब खाना खिला रहे हैं। अल्लाह अकबर। जाओ और उसको लेकर के आओ, उसको खाना खिलाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसकी तलाश में निकले, उसको लेकर के आए और जब लेकर के आए तो पूरा वाकया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सुनाया। उस शख्स ने कहा कि मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ कि जो रब मुझ पे इतना मेहरबान है उस रब की मैं नाफरमानी करता हुआ नजर आ रहा हूँ। इब्राहिम मुझे कलमा पढ़ाओ और अपने दीन में दाखिल कर लो। आज से मैं पुराना दीन छोड़ रहा हूँ और दीन इब्राहिमी में दाखिल हो रहा हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको कलमा पढ़ाया और दीन इब्राहिमी में दाखिल कर लिया। तो पता चला मेहमान के लिए खाना खिलाने के लिए कितनी बड़ी फजीलत है। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मेहमान आता है तो वो अपनी किस्मत का रिज्क साथ लेकर के आता है। पहले एक दौर था कि जब इंसान को फिक्र रहा करती थी मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं। आज ये दौर है मेरे प्यारों कि ये शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। आज इंसान का हाल ये है कि मेरे घर आने वाला मेहमान चला जाए तब उसके बाद में मैं खाना खाऊं। पहले के मुसलमान थे जो सोचते थे कि कोई मेहमान आ जाए हमारे घर पर ताकि मैं उसके साथ बैठ करके खाना खाऊं। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, अगर किसी इंसान को यह देखना है कि उसके घर में खैर बरकत है या नहीं है तो वो देख ले उसके घर में मेहमान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मेहमान का आना घर में खैर बरकत की दलील है। मेहमान का आना घर में खैर बरकत का सबूत है। अल्लाह अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेहमान के साथ खाना खाते थे और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब मेहमान किसी के घर पे आता है तो वो अपनी किस्मत का रिस्क साथ लेकर के आता है और मेहमान के सदके वसीले से अच्छी ग़िज़ाएं खाने को मिल जाती हैं, मेहमान के वसीले से अच्छा खाना खाने को मिल जाता है। अगर मेहमान नहीं होता है तो इंसान जैसा चाहता है वैसा खाना बना के खा लेता है और जब मेहमान आ जाता है तो इज्जत बचाने के लिए बेहतरीन खाने का इंतजाम करता है। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के यहाँ पर कोई मेहमान नहीं आया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेहमान की तलाश में निकले। आपने देखा कि कोई मेहमान नहीं मिल
रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने दो फरिश्तों को मेहमान बना करके भेज दिया। वो दोनों फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहते हैं हम तुम्हारे मेहमान हैं, हमको अपने साथ लेकर के चलो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको लेकर के आते हैं, दस्तरखान पे बिठाते हैं, खाना लगाया जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भूख लगी थी, कई वक्त के भूखे थे, आप अपनी नजरें नीचे झुका करके खाना खा रहे थे। मेहमान खामोशी के साथ बैठे हुए थे। हजरते सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पर्दे की आड़ से देखा। हजरते सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पर्दे की आड़ से कहा, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर, आप खाना खा रहे हो और मेहमान देखो खाली बैठे हुए हैं, मेहमान खाना नहीं खा रहे हैं। हजरते इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नजर उठा के देखा, फरमाया कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? उन दोनों मेहमानों ने कहा हम खाना खाने से पाक हैं। कहा क्या तुम फरिश्ते हो? कहा हाँ हम फरिश्ते हैं। कहा क्या अल्लाहु अकबर, आप फरिश्ते हो? कहा हाँ फरिश्ते हैं, और हमें परवरदिगारे आलम ने आपको खाना खिलाने के लिए भेजा है, क्योंकि रब तबारक व तआला फरमाता है कि मेरा इब्राहिम तब तक खाना नहीं खाएगा जब तक उसके घर पर कोई मेहमान नहीं पहुंच जाएगा। अरे फरिश्ते तुम मेहमान बन करके जाओ और मेरे इब्राहिम को ये खुशखबरी सुना दो कि इब्राहिम के यहाँ पर एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम इसहाक होगा, और परवरदिगारे आलम उसको मनसबे नबुव्वत पर फाइज फरमाएगा। हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पर्दे की आड़ से ताज्जुब का इजहार किया कि मेरे यहाँ बेटा पैदा होगा जबकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूं और मेरे शौहर के बाल सफेद पड़ चुके हैं। हजरत सारा ने जब ये ताज्जुब का इजहार किया तो फरिश्तों ने कहा, ऐ बीबी, आप इस बात पर ताज्जुब कर रही है कि आप दोनों बूढ़े हो चुके हो इसलिए आपके यहाँ पर बेटा पैदा होगा, इस बात पर ताज्जुब कर रही हो? वो रब तो कादिर मुतलक है, उसने इंसान को तब पैदा किया था जब इंसान का वजूद भी नहीं था। इसलिए हमको अल्लाह की रजा में राजी रहना चाहिए, हमको अल्लाह की जात पर भरोसा रखना चाहिए, हमको अल्लाह की रजा में राजी रहना चाहिए। राजी ब रजा रहने वालों के लिए परवरदिगार आलम बेहतरीन बदला अता फरमाता है, बेहतरीन इनाम अता फरमाता है। आज शादी के 2-3 साल हो जाएं और अगर भाई इंसान के यहाँ पर बच्चा ना हो तो वो बीबी को ताना मारना शुरू कर देते हैं, वो बीबियों को ताना देना शुरू कर देते हैं कि कैसी आई है, इसकी वजह से घर में कोई औलाद नहीं है, इसकी वजह से घर में कोई खुशखबरी की सुनाए, कोई खुशखबरी भी सुनने को नहीं मिल रही है। अल्लाह अकबर, 2-3 साल के बाद भी औरतों को ताना दिया जाना शुरू हो जाता है। याद रखो परवरदिगार कुरान में इरशाद फरमाता है, मेरा रब इरशाद फरमाता है, यहाँ बोले मन यशाओ इनासों व यहाँ बोले मन यशाओ ज़कूर, अल्लाह जिसे चाहता है बेटे अता फरमा, बेटियां अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है बेटे अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकरानो व इनासा, या अल्लाह उनको दोनों अता फरमाता है, बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। ये तो अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, बेटा देना अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, औलाद देना अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। इसलिए हमने उस रब की जात पर भरोसा रखना चाहिए, उस रब की जात पर तवक्कुल रखना चाहिए। और उस रब ने तब इंसान को पैदा किया था जब इंसान का वजूद भी नहीं था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया। वो रब कादिर मुतलक है, वो रब चाहे तो बुढ़ापे में औलाद अता फरमा दे, वो रब चाहे तो जवानी में औलाद अता फरमा दे। इसलिए हमको उस रब की जात पर भरोसा रखना चाहिए, हमको उस रब की जात पर तवक्कुल रखना चाहिए, क्योंकि औलाद देना अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। उस रब की बारगाह में झुको, मस्जिदों में आओ, रो रो करके उस रब की बारगाह में दुआएं करो। वो रब तबारक व तआला तुम्हारे घर में खुशियां भर देगा। तुम उस रब की बारगाह में झुको तो सही, लेकिन तुमने डॉक्टरों की जात पे भरोसा रखा, तुमने नर्सों के कहने पे भरोसा रखा, तुमने आज दुनियावी मशीनों के ऊपर भरोसा रखा। उस रब की बारगाह में सर को नहीं झुकाया जिस रब ने इन डॉक्टरों को पैदा किया, उस रब की बारगाह में नहीं झुके जिस रब ने इन नर्सों को पैदा किया, उस रब की बारगाह में नहीं झुके जिस रब ने इंसान के अंदर ये दिमाग दिया कि वो ऐसी मशीनें ईजाद करे जिसके जरिए इंसान के पेट में क्या है वो बता दे। तमाम बीमारियां बताने वाली मशीन इंसान ने बनाई है, तो उस इंसान को जो दिमाग दिया है उस रब ने दिया है। उस रब की बारगाह में झुको जो अहकमुल हाकिमीन है, उस रब की बारगाह में झुको जो मालिक अलल इतलाक है, उस रब की बारगाह में झुको जो मुदब्बिर हकीकी है, उस रब की बारगाह में झुको जो अहकमुल हाकिमीन है। वो रब चाहे
تو ذرے کو آفتاب بنا دے، وہ رب چاہے تو قطرے کو دریا بنا دے، وہی رب ہے جو دوش ہوا کو، جو غبار کو دوش ہوا پر مقرر فرماتا ہے، وہ رب ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں محفوظ رکھا، وہ میرا رب ہے جس نے غار ثور میں اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی، وہ میرا پروردگار ہے جس نے آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، وہ میرا پروردگار ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ اس رب کی ذات پر بھروسہ رکھو، جھک جاؤ اس رب کی بارگاہ میں، آ جاؤ اپنے رب کی بارگاہ میں، رو رو کر کے دعائیں کرو، میرے پروردگار ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں، میرے مولا ہم سے جو خطائیں ہوئی ہیں، مولا ہم اپنے خطاؤں کی گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، میرے پروردگار عالم میری دعا کو قبول فرما لے، میرے مولا میری خطاؤں کو معاف فرما دے، وہ رب ارحم الراحمین ہے، میرا رب غفور و رحیم ہے، میرا رب تمہیں بخش دے گا اور میرا رب تم کو نیک اولاد عطا فرما دے گا۔ اس رب کی بارگاہ میں جھکو جو رب تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس رب کی بارگاہ میں جھکو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں جھکو گے، میرے رب کی بارگاہ میں آ کر کے رو رو کر دعائیں مانگو گے، معافی مانگو گے اپنے گناہوں سے، اور اپنا رب کی بارگاہ میں جھک کر کے یہ عرض کرو گے رب حبلی من الصالحین، میرے پروردگار ہم کو نیک اولاد عطا فرما دے، میرا رب تم کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ اس لیے اپنے رب کی بارگاہ میں جھکو۔ مہمان کا آنا برکت کی نشانی ہے، مہمان جس گھر میں آتا ہے اس گھر میں اب خیر و برکت لے کر کے آتا ہے، مہمان جس گھر میں آتا ہے وہ خیر و برکت کا سبب ہوتا ہے۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا جس کو یہ دیکھنا ہو کہ میرے گھر میں برکت ہے یا نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں دیکھ لے کہ مہمانوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے کہ نہیں ہے، اگر مہمانوں کا آنا جانا ہے اس کے یہاں پر تو اس کے گھر میں خیر و برکت ہے۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، میرے بیان کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی ہو، میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ طیب پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں بچاتی ہیں۔ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ۔ فصلی پر اور ونہر پر کیا جو غور، فصلی پر اور ونہر پر نظر ٹھہر گئی میری حسین کے سر پر، کیا جو غور فصلی پر اور ونہر پر نظر ٹھہر گئی میری حسین کے سر پر، شعور انتم العلون بانٹنے کے لیے، شعور انتم العلون بانٹنے کے لیے سرے حسین سفر کر رہا ہے خنجر پر، سرے حسین سفر کر رہا ہے خنجر پر۔ حضرات، سید الشہداء امام حسین کی ذات گرامی پر لکھنے والے لکھتے رہے، قصیدہ پڑھتے والے پڑھتے رہے، اہل قلم نے قلم کی جولانیت سے امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت کا سمندر پیش کرنے کی سعادت بٹورتے رہے، مگر کیا ہے میرے امام، کیا ہے سید الشہداء تاجدار صبر و رضا، یا تو مصطفیٰ جانے یا خود مصطفیٰ کا نواسا حسین جانے۔ اگر آپ توجہ کے ساتھ سنیے تو کچھ اچھی باتیں آپ تک پہنچ جائیں، چونکہ ہم کوئی رٹی رٹائی تقریر نہیں کرتے، آپ کی فکر و نظر اور سماعت کی پیشانی کو پڑھ کر جو ہو سکتا ہے ہم آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ ذرا محبت سے ہاتھ اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور زندگی کے ساتھ بولیے یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ۔ حضرات، میرے حسین کی زندگی کو کوئی سمجھ نہیں پائے گا، یوں تو لکھنے والے لکھتے رہے، بولتے والے بولنے والے بولتے رہے، پڑھنے والے پڑھتے رہے، مگر آئیے میرے آقا حسین کی زندگی کا ایک رخ آپ کو دکھلائیں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ شہر بریلی شریف ہے، تھوڑا سا مجھ کو موقع دیجئے، 10 منٹ آپ سپورٹ کیجئے،
10 मिनट आपके सपोर्ट के बाद खुद आपको इश्क का वो पासपोर्ट दूंगा कि शहर बरेली से आपके इश्क का जहाज वाया अजमेरो बगदादो करबलाए मुअल्ला व नजफ अशरफ होकर शहर बरेली के शहर मदीना के नखलिस्तान में थोड़ी सी जगह पाकर उतर जाएगा। मुलाहिजा फरमाइए, जरा आप वो हिस्सा देखिए। उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ रखते हैं। मेरी तकरीर में आपको अहले ईमान की शान दिखेगी। और आज हम जो तबाही के असबाब से दो चार हैं, आज हम जो तबाही की राहों पे चल पड़े हैं, उसकी वजह क्या है शायद हम आपको ये भी अपनी हैसियत के मुताबिक बतला सके। मुफ्ती कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती कलीम साहब किबला तशरीफ रखते हैं। दिगर बावकार उलमाए किराम मौजूद हैं। मुलाहिजा फरमाइए, अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों मैं जमीन पर अपना नायब पैदा करने वाला हूँ, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने कहा, मौला तू उसे खलीफा बनाएगा जो जमीन में खून रेजियां करेगा? तू उसे खलीफा बनाएगा जो दहशत गर्दी मचाएगा? तू उसे खलीफा बनाएगा जो इंसान के गले पर तलवार की धार चलाकर खून का माहौल पैदा करेगा? क्या तू उसे खलीफा बनाएगा जो पूरी अमन और शांति के पूरे मिजाज को भंग करेगा? जब फरिश्तों ने कहा था और साथ में ये भी कहा था, ए रब मैं तेरी तस्बीह के लिए काफी हूँ, मैं तेरी तकदीस के लिए काफी हूँ, मैं तेरी तहमीद के लिए काफी हूँ, मैं तेरी तहलील के लिए काफी हूँ। ए अल्लाह मैं सुबह शाम तेरे हमद के गीत गाता हूँ, तू उसे अपना खलीफा मत बना जो खून रेजी करे, तो उसे अपना खलीफा मत बना जो दहशत गर्दी का राज कायम करे। रब ने फरमाया फरिश्तों से, फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अब जरा तेवर देखिए, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, उन फरिश्तों से जिनकी अदा अदा में तस्बीह, उन फरिश्तों से जिनके किरदार के आंगन में तस्बीह हो तहमीद के अलावा दूसरी कोई चीज नहीं। मगर यहीं पर रुक जाइए, फरिश्तों का कोई बाप नहीं होता।